Now we have 30 people. आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा जय करुणाब्धे जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम नमः शिवाय. Daniel, you are in India or in Tel Aviv? Daniel. Daniel. You are silent. We can't hear you. You have to do this thing. Take it off. Can you hear me now? No. So my Yes. my query was, So Bhat, I was just Are saying you that in it's India- great, are you in great, India? great to see you after such a long time. are you in India or in Tel Aviv? I'm in Tel Aviv, on I the see. 4th floor of Gilman Building, Tel Aviv University. Good. Good to see you. Respected dignitaries, we are going to start our program now. Yeah. Namaha Sabhabhyah Sabhapatibhyah Vyascha Namo Namaha. Very good morning to all of you. I am Neeti Singh, Assistant Professor in the Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University, Varanasi. And I'm delighted to have you all in this one-day international conference on Sankhya, the philosophy of yoga. For an auspicious commencement of the program, I'm recalling the founder of this university, Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya, and requesting our respected head, Sir Professor Anand Mishra, and former head, Sir Professor S.P. Pandey, to come forward for lighting the lamp and garlanding the bust of Mahamana Malviya. Thank you so much, sir. Dr. Shruti Mishra and Dr. Kalpana Yadav, ma'am, please accompany. Me. Uh,
Thank you so much to all of you. Now, I would like to invite Miss Ashwarya and Miss Anjali for the rendition of Kulgeet. मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि। बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। नई नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे है विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्वश्रेष्ठ की राजधानी राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्म रक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म वेद्या की राजधानी राजधानी। वो मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यही भले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी। सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों ना कर ये बाग वेद्या की राजधानी राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्ववेद्या की राजधानी राजधानी। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस ये उनकी शक्ति। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस ये उनकी शक्ति। प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी
धानी राग धानी. Thank you, Ashwarya and Anjali. After this beautiful rendition of our Kulgeet, without further ado, I request our head of the department, Sir Professor Anand Mishra, to welcome our guests and participants. Sir. You, Honorable Chairperson Professor S.R. Bhattji, our speakers, Professor Daniel Rave and Dr. Pratibha Graman, eminent scholars, colleagues, students, and friends present offline or online in the International Conference on Sankhya, the philosophy of yoga. I, on behalf of the department and all our colleagues, welcome you. Friends, this is really a great privilege for us that a galaxy of scholars of Sankhya and Yoga are present here. Prominent among them are Professor Daniel Rave, who has written some good books on yoga and translated the Yoga Sutras in Hebrew. Dr. Geet Pratibha Graman, who is a devoted scholar of classical Sankhya and practitioner of pranayama and yoga. Professor Krishnakant Sarmaji, a renowned scholar of Sankhya and former dean of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankai. Professor Kripa Sankarji, who has worked on Yukti Deepika. Professor Devvrat Chaubeji, who is a scholar of Sankhya, Yoga and Ayurveda. Dr. Sasikant Dwivedi ji, again a scholar of Yoga and Sankhya in Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankai. Dr. Dinanath Pandey, who is a devoted scholar, he must be just joining the program. Dr. Dinanath Pandey, who has written a commentary on Sankhya Karika, Sankhya Tattva Manorma. So we are really very fortunate that all these scholars are here with us in the conference. I welcome all these scholars. I especially welcome Professor S.R. Bhatt, who has accepted our invitation to preside over the inaugural session. Similarly, we extend warm welcome to Professor D.N. Tiwari, Professor Jyosna Srivastav, Professor D.A. Gangadhar, who would preside different sessions of the conference.
I also extend warm welcome to some of the promising young scholars who have or who would present papers in the technical sessions of the conference. Prominent amongst them are Dr. Lalit Saraswat from IIT Kanpur, Ramesh Kumar and Dr. Ansu from AIMS Rishikesh, Dr. Rajan from Kalinga Institute of Social Sciences, Dr. Rajiv Lochan Behra, Dr. Baleswar Yadav from this department, Dr. D. Pramod, presently Dean in Malla Reddy University, Hyderabad, and number of other scholars would also present in the conference. Besides these scholars, there are other scholars who are connected, as I can see on the screen, Professor G. P. Das, Dr. Professor Bimalendra Kumar, Dr. Prashant Sukla, and other scholars. I welcome all these scholars, students, and colleagues once more. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. This is indeed a great pleasure for us that we are celebrating World Yoga Day today. And it's a matter of great pride and honor that our ancient philosophical practice and systems are being recognized and celebrated worldwide. While organizing this conference, our motive and ways are different from other programs being organized under the name of Yoga Day. We are not here to discuss the hundreds of yoga asanas and pranayams. Neither we are going to perform any. We are here to visit the labyrinth of theoretical underpinnings of yoga. And I suppose you all must have gone through the concept note of this conference. But for giving us a better understanding of the topic and this conference's purpose, we have with us Professor Daniel Rave, Professor of Philosophy from Tel Aviv University, Israel, Dr. Pratibha Graman, San Jose, Los Gatos, CA, and Professor S.R. Bhatt, New Delhi. The session is supposed to be presided over by Professor S.R. Bhatt, wherein Professor Daniel Rave will give inaugural speech and Dr. Pratibha Graman will deliver a special speech related to the theme of this conference. So let's begin with the inaugural speech, for which I request Professor Daniel Rave, who needs no introduction, to kindly take over the mic and address us. Professor Rave, over to you now. Thank you. Can you hear me properly? Yes, okay. Before I start, can I share my screen with you? Of course, sir. How do I do it with Google Meet? Can you direct me? Sure, sir. You may share your screen now. So tell me how to do it. Okay. There is one tab where you can touch. On your screen, you can see one arrow or maybe three dots are there. So just, Yes, 3 dots. yeah, okay. Then there is, where? No, sorry. I think that arrow, sir, please don't touch that 3 dots. Touch the arrow, the tab where one arrow is there. Okay. Touch there. And then what do you want to share? Your entire screen or just a window or tab where you have already opened your PPT file? Yeah, let's see if I can do it. The window. Yeah. 1 second. Sorry for this technical issue. And no issue, sir. We are assisting you. So please tab your window or tab wherever you have opened your PPT file. Go there.
1 second. Okay, I don't know how to do it. Okay, so we'll manage without it. We'll manage without it. Okay, sir. Okay, What will it? so let me start. Thank you. First, it's a great pleasure to join you again. I wish to thank Professor Anand Mishra for this kind invitation. I hope that next time we meet, it will be really in Banaras, out of these screens. Second, it's a great pleasure to see Professor Bhatt after ages and ages. He generously read with me the Sankhya Karika at his home in Delhi more than 20 years ago. I don't know if he remembers, and I'm grateful until this very day. Third, I'm speaking to you today as a student of yoga and Sankhya. I'm not a pandit, certainly not a guru, and I'm here to share my thoughts with you, to think with you on Sankhya and yoga. And as you will see in a few lines, I will focus on a contemporary commentator of Patanjali and Ishvara Krishna. I'm sure that you heard of him. I'm almost sure that you would be surprised that I consider him as a commentator, nothing less, of yoga and Sankhya. And not just as the famous scholar of Advaita Vedanta that he is. I'm speaking of Krishna Chandra Bhattacharya, K.C. Bhattacharya, 1875 to 1949. I will refer to him as KCB. My talk is a bit technical, and I'm not sure that my accent would be easy for you to understand, but since I'm not sharing the screen, so please stop me in between if something is not clear. So this is what I wrote. The most interesting work in my eyes in recent years on yoga philosophy is Pradeep Gokhale's book, The Yoga Sutra of Patanjali, a new introduction to the Buddhist truths of the yoga system from 2020. I don't know if you are aware of Pradeep Gokhale's book that came out in the midst of lockdowns and COVID, a new introduction to the Buddhist truths of the yoga system. Gokhale argues that Patanjali draws heavily on Yogacara Buddhism. He shows that more verses of the Yoga Sutra are influenced by and correspond with and are sometimes almost cut and paste from Buddhist sources. More verses, he says, than from Sankhya philosophy. But Vyasa, Gokhale further argues, Patanjali's Bhashyakara, his foremost commentator, makes an attempt to distance Patanjali from the Buddhists and to pull him to the quote-unquote right side of the philosophical map, i.e. the Astika side, the side of the Veda loyalists. The Buddhists and the Jains, as all of you would know, belong to the opposing Nastika side. According to Gokhale, Vyasa is pro-Sankhya, Patanjali closer to the Buddhists. Vyasa, Gokhale asserts, I'm quoting, must have been aware of the Buddhist background of the Yoga Sutra. But he seems to have knowingly avoided acknowledging the Buddhist influence. He interprets the whole of the Yoga Sutra as a Sankhya text. He acknowledges the Buddhist position only when it is to be criticized or when the Sankhya position is to be defended against it. Unfortunately, Gokhale concludes, the Bhashyakara's narrow interpretation of the Yoga Sutra came to be treated as authentic at the hands of later commentators, and the Buddhist background got completely sidetracked. From Vyasa onwards, the Yoga Sutra is usually seen as rooted in the Sankhya tradition, adopting Sankhya metaphysics and vocabulary. Sankhya metaphysics sets forth a dualistic worldview comprising of Purusha,
the selfhood beyond, and prakriti, matter, which includes everything which is not Purusha, from stars and volcanoes to the human consciousness. Yes, the consciousness belongs to the category of matter. Sankhya vocabulary includes terms such as Purusha, Prakriti, and Kaivalya. Kaivalya stands for the ultimate distinction and separation between Prakriti and Purusha, and entails freedom, freedom of the self, of pure subjectivity, as KCB puts it, we will shortly see, pure subjectivity from the world and the worldly, from everything objective, including the content of our consciousness. The famous 14th century Sarva Darshana Sangraha, encyclopedia of all the philosophical schools, 15 or 16 all in all, from Charvaka to Shankara's Vedanta, including the Raseshvara system of Shiva followers who advocate the use of Mercury to make the body immortal, projects Patanjala Yoga, I'm sure that all of you know, as Seshvara, Sa Ishvara Sankhya, i.e. Sankhya with Ishvara, God, or theistic Sankhya, endorsing the inseparability challenged by Gokhale of Sankhya and Yoga. In his paper, Yoga and Seshvara Sankhya from 1981, Johannes Bronkhorst is skeptic about the appropriateness of referring to Patanjala Darshana, to Patanjali's system, as Seshvara Sankhya, as the author or compiler of the Sarva Darshana Sangraha does. The distinction between Seshvara and Nir Ishvara Sankhya, namely Sankhya with and without God, Bronkhorst explains, occurs in a number of works, including Haribhadra's 9th century Sad Darshana Samuchaya, Shanta Rakshita's 8th century Tattva Sangraha, and Kamala Shila's Panjika. In the Tattva Sangraha and its commentary, the Panjika, God is depicted as a creator, as against Ishvara's portrayal in the Yoga Sutra, even if some of the commentators, from Vachaspati Mishra through the author of the Yoga Sutra Bhashya Vivarana to Vijnana Bhikshu, do depict Ishvara as the creator and destroyer of the world within a cosmology which assumes a beginningless series of creation and dissolution of the world, as Gokhale puts it in summary of their elaborate discussion of Ishvara in their commentaries. Bronkhorst therefore suggests that when the authors of these works speak of Seshvara Sankhya, they hardly refer to Patanjali, whose text, according to their perception of Ishvara, rather belongs to the category of Nir Ishvara Sankhya, Sankhya without God. Bronkhorst further suggests that the phrase Seshvara Sankhya in these texts could be referring to the Pancharatra system. A sentence in brackets. For me, the importance of thinkers such as Gokhale and Bronkhorst, and I would add, of course, Daya Krishna to the same group, is that they challenge the conventional picture of the history of Indian philosophy. Their questions and questioning approach show us that this picture and other pictures that we have become used to are more complex and interesting than we usually assume. Now, after this introduction, I'm reaching KCB. But, I'm starting with the word but, apropos everything I said so far, Krishna Chandra Bhattacharya, my protagonist in the following paragraphs, who I'm about to introduce to you as a contemporary commentator of Sankhya and Yoga, rooted in the commentarial tradition, reads the Yoga Sutra as closely related to Sankhya philosophy. A word about KCB before I proceed. In the following lines, I draw on KCB's essays, studies in Sankhya philosophy, and studies in Yoga philosophy.
Both essays included in his collected writings are based on two series of lectures delivered by him in 1937 at, at the Indian Institute of Philosophy, Amalner. Yes, the famous Vedantin is interested in Sankhya and Yoga and writes commentaries to the Sankhya Karika and the Yoga Sutra. My contention is that to understand KCB's position with regard to classical Indian philosophy, one must visit Vijnana Bhikshu's late 16th century commentary on the Sankhya Sutra, his Sankhya Pravachana Bhashya. Moreover, this commentary must be looked into in light of Vijnana Bhikshu's earlier commentarial work on Vedanta sources. Andrew Nicholson, in his book Unifying Hinduism from 2010, notes that Vijnana Bhikshu refers his readers both in his Sankhya Sutra and Yoga Sutra commentaries to his earlier commentary on the Brahma Sutra. Nicholson suggests that, I quote, Vijnana Bhikshu conceives of all his writings as presenting a single comprehensive philosophical position. He is not content to see his comments on a single text as merely applying to that school and no other. He sees the dualism of Sankhya and Yoga, of Sankhya and Yoga's Purusha and Prakriti, as valid at a certain level of analysis, namely not excluding or excluded by Vedanta premises. Replace, I'm suggesting, Vijnana Bhikshu with KCB, and I think that Nicholson's observation, a single comprehensive philosophical position with Sankhya and Yoga trajectories, is still valid, even if Vedanta for KCB is primarily Advaita, whereas Vijnana Bhikshu thinks in the direction of Beda Vedanta. But does KCB aim to what Nicholson refers to in his discussion of Vijnana Bhikshu as a higher overarching unity between schools and philosophical positions? My answer is toward the affirmative, but for KCB, unity takes the form of alternation. It is not unity in diversity, but unity as diversity. But I cannot expand here on KCB's notion of alternation, since I wish to turn back to KCB on Patanjali. KCB reads the Yoga Sutra as closely related to Sankhya philosophy, I already said. He discusses this proximity and underscores the differences between Sankhya and Yoga in the first 3 chapters of his studies in yoga philosophy. And you realize that I'm actually encouraging you to read KCB. So the titles of the first 3 chapters of studies in yoga philosophy are Sankhya and Yoga, the place of Buddhi, Ahankara, and Asmita. Sankhya and Yoga, causality, becoming, and time. And Sankhya and Yoga, the empirical world, its status and constitution. The chapter titles reflect the unique character of KCB's work. Through a magnifying glass, he examines the Yoga Sutra, spotlighting what he sees as the central philosophical junctions of the text. From the vrittis, the modes of consciousness, as KCB puts it, of chapter 1, through the kleshas, the psychological karmic patterns, which KCB renders with a clear Kantian trace as transcendental errors of chapter 2 of the Yoga Sutra, to Patanjali on language and time, and the status and the relationship between knowledge and willing in the Yoga Sutra. Moreover, KCB sheds philosophical light on 2 central issues in Patanjali's text, the siddhis, the yogic powers of chapter 3, and Ishvara of chapters 1 and 2, and the concept and practice of Ishvara Pranidhana, which KCB discusses at length, and so will I in a few lines to come. For KCB, the essential difference between Sankhya and Yoga
is the way they perceive the concept of willing. In Sankhya, willing is a function of ahankara, not of the buddhi. It is an activity of a finite agent, namely the worldly me, through which he maintains his finitude. The buddhi, on the other hand, is perceived here as infinite. Willing emanates from the self-conscious certitude, which is the function of the buddhi, but works at the limited level of ahankara. This is Sankhya. In yoga, on the other hand, willing is asmita. It is not only born of self-consciousness, as in Sankhya, but it is in fact self-conscious subjectivity. To be conscious of willing, KCB explains, is to be conscious of I willing. Consciousness not just of me, but of I becoming me. This me is the everyday finite me. The I alludes to the infinity of pure subjectivity. The idea is that our phenomenal existence is a matter of the of the infinite I minimizing himself to a me. Unlimited subjectivity identifying with a limited version of itself. This is how KCB opens his discussion of yoga philosophy. Very technical, rooted in textual evidence, and at the same time philosophical, as he argues from the very beginning that the concept of willing is the heart of the difference between Sankhya and yoga, and the soul of Patanjali yoga. Interestingly, there is no distinct Sanskrit term in the Yoga Sutra that can be translated as will or willing. In Sankhya, freedom, kaivalya, is embedded in knowledge and is the result of an epistemological correction. When the error, avidya, is corrected, freedom occurs. In yoga, KCB contends, freedom is a matter of willing. Will is the force that takes the aspirant of freedom from the realization I becoming me to the certitude I am I. I am I. To substantiate his claim that in yoga willing runs beyond knowledge, as he puts it, KCB takes his readers to Yoga Sutra 118, where Asampragyata Samadhi is expounded. Here Patanjali explains that in this subtle stage of meditation, the yogi, the practitioner of yoga, cuts through the vritti level of consciousness and reaches the subterranean sanskara level. In other words, when mental activity, the vritti level, is brought to a halt, the practitioner of yoga can look directly into his karmic residue. In this advanced meditative state, knowledge can no longer take place. There is no knowledge except through everything, KCB elucidates. Therefore, it is up to will alone to carry the aspirant forward to the objectless subjectivity of Nirbija Samadhi, seedless or sanskara-less or absolutely empty meditation. KCB further suggests that the vrittis, the modifications of the mind, move in two directions, positive and negative. In this respect, Patanjali in Yoga Sutra 1.5 speaks in terms of klishta and aklishta, namely vrittis that generate pain and vrittis that do not. The latter category pertains to mental activity which is part of preliminary meditative stages, included under the category of sampragyata. With reference to the two directions that consciousness can take, Patanjali, speaking of the psychological sanskara level underlying the mental vritti level, further employs the notions of vyuthana and nirodha, creation, or more literally awakening and cessation. According to him, outward-facing consciousness
driven by Vyutana sanskaras, roots the human person in phenomenal experience, bhoga, whereas inward-facing consciousness, facilitated by Nirodha sanskaras, is contributive of apavarga, release from phenomenality, or in KCB, from objectivity. In his commentary on Yoga Sutra 112, again, as many of you would know, Vyasa, Patanjali's Bhashyakara, explains these two directions of consciousness in his own way. He famously writes, that which is called the river of the mind flows in two directions. It flows toward the good and toward evil. That which is inclined toward the domain of viveka and leads to kaivalya flows to the good. That which is inclined toward the domain of aviveka and leads to samsara, to sansar, flows to the evil. Of these, the flow toward objects is overcome by vairagya, this passion, if you wish, and repetitive practice, abhyasa, of holding on to discerning view, viveka darshana, unlocks the flow of this very viveka. Hence, chitta-vritti nirodha depends on both abhyasa and vairagya. This is a vyasa. Vyasa's metaphor portraying the mind as a flowing river is potent. It is the same Vyasa that in his commentary on Yoga Sutra 1.2, which says Yoga Chitta Vritti Nirodha, writes that the word all, sarva, does not occur in this verse, which means that yoga as a process is not the cessation of all mental activity, but merely of what he refers to in his commentary on Yoga Sutra 112 as papaya, leading to evil, to aviveka, activity of the mind. But in Yoga Sutra 151, the final verse of chapter 1 of the Yoga Sutra, the word sarva does occur. Hence, yoga as the end result of yoga as a process is a matter of reaching beyond good and evil. Now I'm skipping a paragraph where KCB himself, in studies in yoga philosophy, compares between Patanjali and Nietzsche. And again, I'm encouraging you to read KCB on yoga. And I write with reference to this long quote that I'm not reading to you. For KCB, yoga is primarily a matter of will. I already said, a matter of will. More precisely, it is about the will not to will, the will to nivritti, namely to abandon the worldly, objective mode of consciousness. It is the will, quote, to freedom as the power to stand as distinct from the power to create objective values indefinitely, unquote. The term values belong to the realm of ethics, which is transcended in the process of yoga along with everything else worldly. The negative will described here, to stand distinct from the power to create, separates the yogi, KCB, the comparative philosopher, notes, from Nietzsche's Superman. For the German philosopher, since God is dead, which strips his representatives in the world of their authority, it is up to man and woman, of course, as a Superman and Superwoman, if you wish, as more than a man, to will his or their own values. This does not mean that he has to structure a new or new old value system, the same lady with a different dress, if I may translate the Hebrew phrase. Instead, he may or should retain what in a few lines I will refer to as childlikeness. Childlikeness. That is a sense of continuous creation. Will is the creative power of the Superman. Purusha, literally man, namely Patanjali's Sankhyan Purusha,
is also more than a man, a superman if you wish. He is endowed with madhyastyam, as the author of the Sankhya Karika puts it in Sankhya Karika 19, that is middleness, middleness, like zero on the number scale, transcending positive and negative numbers, good and evil. He is neither created nor creative, and is indifferent to everything worldly, hence beyond values and value systems. In Zarathustra's first speech on the three metamorphoses, ... Again, I'm skipping a paragraph because my time is short. And again, I'm saying something about the comparison between Nietzsche and Patanjali. But for Patanjali, I'm writing after the passage which I skipped, there is no new world, no creation, but sarva nirodha, total cessation of the world, or in fact of worldly, intentional, constructive consciousness, and retreat. I think of Patanjali's term pratiprasava, involution, return to origin, into what KCB sees as sheer subjectivity. Here I would like to turn to Krishna's critique of nivratism. In brackets I wrote, KCB's isms, from Vedantism to Advaitism, etc., are contagious. So I want to return to Krishna's criticism of nivratism, of the notion of nivriti in Patanjali and KCB. On KCB, Krishna writes that, I quote, he, namely KCB, is in a hurry to reach the subject as freedom, forgetting that the real life of the subject as freedom is in the phenomenology of identification and de-identification, along with the creation and dissolution of worlds, and not only in the complete withdrawal of the spirit into itself without any correlate world at all to which to relate or from which to withdraw, unquote. On Patanjali, Krishna writes, again I'm quoting, why the outgoing movement of consciousness? Why the outgoing movement of consciousness, pravriti, should be regarded as something undesirable in itself, or the inward movement, nivriti, intrinsically desirable, has remained the unasked question of the Indian tradition. Those of you who knew Dayaji can remember the phrase, the unasked questions. Dayaji was in search for the unasked questions. So why nivrati is considered positive and pravrati is considered negative, Dayaji writes, is the unasked questions of the Indian tradition. Freedom lies, he continues, in the double capacity of consciousness at the human level to move outward or return inward as it pleases, bound neither by one or the other, and hence, at another level, feeling itself free from both. Both the outward and the inward movement seem to have inbuilt limitations, not exactly known to man and woman, and perhaps unknowable in principle, as the former encounters the givenness of the body and the physical world on the one hand, and the socio-cultural and political economic worlds on the other, while the latter seems to result from the very nature of consciousness and self-consciousness, and the interactive interrelationship between them. Krishna's point, is that both modes of consciousness, the detached, nivriti, as much as the engaged, pravriti, have their limitation, even if Patanjali and KCB see only pravriti as limited. Freedom for Krishna is a matter of free travel between these two modes. Now I want to
to touch on 3 more points in short. Number 1, KCB on Ishvara Pranidhana. KCB on Ishvara Pranidhana. In his commentary on Yoga Sutra 120, KCB comments that Asam Pragyata, again a higher stage of meditation, where there is no vritti at all. So KCB writes that Asam Pragyata can be reached either through willing or through surrender of willing. Willing refers to the above-mentioned procedure of Abhyasa and Vairagya. Surrender of willing to Ishvara Pranidhana. KCB explains, and I'm quoting him, Asam Pragyata Samadhi may, according to yoga, come with absolute spontaneity in the case of certain devtas, but it has to be reached by us through spiritual activity. The activity may be nirodha, involving shraddha, faith, virya, strength of will. This is KCB. He translates virya as strength of will, etc. In the super intense form, or it may be a unique mode of reflection on God, Ishvara Pranidhana. The conjunction or va in Yoga Sutra 123 has to be interpreted, he writes, as meaning that Pranidhana is a sadhana alternative to Nirodha will and is itself a surrender of willing. These devtas that he speaks about, now I'm commenting on KCB's commentary, these devtas refer to the categories of Videha and Prakritilaya mentioned by Patanjali in Yoga Sutra 119. The super intense form that KCB speaks about refers to the phrase Tivra Samvega in Yoga Sutra 121, where Patanjali notes that Asam Pragyata Samadhi is nearer, closer to those with the Tivra Samvega. Or in Hariharananda Aranya's translation, for yogis with intense ardor. Gokhale references his readers to Asanga and Vasubandhu for the Buddhist roots of the term Samvega. And KCB speaks of Tivra Samvega, willing. Interestingly, KCB writes in the paragraph that I quoted above, that unlike the devtas, Asam Pragyata has to be reached by us through ... spiritual activity, he said. The phrase by us caught my eye. It has to be reached by us. Does KCB count himself only in the category of human beings or also in the category of aspirants of freedom? KCB further writes on Ishvara Pranidhana, again I'm quoting him, the Pranidhana may be called willing, but it is the willing to arrest negative willing and therefore all willing, to reserve, in fact, the entire attitude of willing, to secure the attitude of knowing though there is no knowledge beyond viveka. This will to be in the knowing attitude for freedom from knowledge, Asam Pragyata, as the end, is the will to contemplate a mystery. Listen, to contemplate a mystery, the mystery of its own spontaneous emergence, of the absolute freedom through which freedom will itself emerge. Sorry, again I'm reading to you. Of the absolute freedom through which free will itself emerges, the freedom to create freedom, which is just the mystery of God as conceived in yoga. The mystery of God as conceived in yoga. My commentary again. Ishvara Pranidhana poses an alternative to the entire attitude of willing, namely to the main road of Patanjali's yoga. This alternative,
This alternative, according to KCB, is a matter of adhering to the attitude of knowing even beyond knowledge in Asampragyata, which he articulates as contemplation of a mystery, namely the mystery of the freedom to create freedom, which for Patanjali he believes is the mystery of God, of Ishvara. These lines of KCB should be read vis-a-vis Yoga Sutra 125. In him, namely in Ishvara, there is the unequated seed of omniscience. Tatra nirati shayam, sarvagya bijam. KCB brings his point home, and again I'm quoting, the will to secure asampragyata samadhi then is at once the culminating phase of willing and a contemplative surrender of the willing attitude. It is the necessary alternation of willing and not willing, where the willing is negative, being withdrawal not only from the vritti of the buddhi, but from the buddhi itself as manifest. And the not willing or surrender of willing is positive contemplation of the mystery of absolute freedom or God. The relation between willing and surrender of willing, between withdrawal from the vrittis and from the buddhi, and contemplation of the mystery of God is KCB's own alternation, own notion of alternation. Remember the alternative absolutes rooted in knowing or willing or feeling. Now I'm talking about KCB's philosophy. Knowing or willing or feeling, and the significance of the or as conveying both the mechanics of alternation and the freedom to move freely between them. Presently, in Yoga Sutra 123, knowing and willing are at stake, and interestingly, Ishvara Pranidhana for KCB does not entail bhakti as feeling, and the or of KCB's concept of alternation fits perfectly the particle va, or in the sutra under discussion. On the term pranidhana as contemplation, KCB further explains that it is bhakti vishesha. That is, particular kind of devotion, a phrase used by Vyasa in his commentary on Yoga Sutra 123. I'm quoting KCB again. It is a kind of intellectual love of God, other than the love that consists in the committing of the fruits of action to God, where God appears to be only a postulate of the contemplative attitude and not the content of knowledge reached prior to the contemplation, unquote. The phrase intellectual love explains the inclusion of Ishvara Pranidhana in the category of knowledge, not feeling. Not feeling. KCB returns to God as a postulate in chapter 10 of Studies in Yoga Philosophy, entitled The Notion of Ishvara, where he explains that even if we know that he, God, Ishvara, must exist, we can never know that he does exist. And of Ishvara, apropos Ishvara Pranidhana, he writes here, it is God who makes worship, Pranidhana, possible. And it is God who frees the worshipper from his own thinking mind, which is freeing him from worship itself and enabling him to work out his liberation. This portrayal of Ishvara sits well with KCB's repeated depiction of yoga as alternatively religious and super-religious activity for super-religious freedom as the end. Super-religious apropos KCB, who writes that it is Ishvara who frees the worshipper from worship itself. The second point which I want to touch out of 3 points in KCB on yoga is KCB on the notion of the siddhi.
siddhi, the yogic power. Patanjali dedicated Patanjali dedicates almost an entire chapter, chapter 3 of the Yoga Sutra, to a long list of meditations. The term used here for meditation is samyama, on different objects, and the siddhi or effect that each of them generates in the form of supernormal knowledge or magical control over objects, as KCB, the commentator, puts it. The objects of meditation vary from the sun, moon, and the pole star to the distinction between the components of language, shabda, artha, and pratyaya, or word reference and corresponding idea, the distinction between short-term and long-term karma, and the distinction between moment and sequence, kshana and krama. Interesting objects of meditation, right? Different distinctions as an object of meditation. The siddhis vary from knowledge, Patanjali uses the word jnana, of the arrangement of the stars, knowledge of the arrangement of the body, knowledge of the content of other minds, knowledge of previous births, and knowledge of the distinction between Purusha and Prakriti, to the capacity of becoming invisible, the capacity of moving freely in space, the capacity to overcome hunger and thirst, mastery over the senses, the elements, and even pradhana, primordial nature. Gokhale translates this Sankhyan term. I gave these examples of objects of meditation and siddhis for the uninitiated. Otherwise, the whole discussion would remain hanging in the air. Amidst this long list of meditations and the siddhis which they produce, Patanjali remarks in Yoga Sutra 338 that these siddhis are obstacles to samadhi, but are nevertheless siddhis, attainments when the consciousness is outward or worldward facing. This remark sits well with KCB's own remark that yoga is essentially the will to freedom as the power to stand distinct from power. KCB handles the question of the siddhis, namely the question about their place and I wrote in brackets, in brackets, significance in the procedure of yoga on three levels. On one level, owing to which I just prefixed the word significance with in significance, KCB is on the same page with the classical commentators, implying that the siddhis are not an end or goal in themselves, and that the magical powers acquired are not meant to be used for the gratification of desire, as he puts it. On a second level, KCB notes that a quantum of magic, he uses the word magic, a quantum of magic is necessary both as incentive for the practitioner, the sadhaka, and to verify the practical, not just theoretical dimension of yoga. I'm quoting KCB. Yoga is a spiritual activity and not mere psychic gymnastics. Yoga is a spiritual activity, not just psychic gymnastics. Therefore, some preliminary experience of the magical efficiency of yoga is necessary for an aspirant in order to have a motive for the practice of yoga proper. Without some experience of yoga magic, spiritual activity is apt to be a matter of idealistic sentiment only, unquote. Professor, sorry to interrupt you, sir, but may you please wind up your lecture within next 5 minutes? Yes, sure. We are short of time. Thank you so much. On a third level, KCB speaks of a more essential role of the siddhis on the path of yoga. They provide an indication
to the power of willing. Willing can move mountains, both external and internal, including, apropos Swarajin ideas, KCB's famous 1929 lecture, Colonial Mountains. I'm saying will can move mountains, including colonial mountains. KCB admits, okay, I'll skip another quote from KCB. How should I close? I'll read the last few lines of my segment on the CDs, and then, with your permission, another 10 lines which has to do with colonialism, with, if you want, with politics, with philosophy and politics. I'm concluding the segment on the CDs. Willing has the capacity to change nature, to suspend its causal operation. Freedom in Patanjali, as KCB reads him, lies in the act of unstitching. The CDs as the epitome of what willing can achieve, and the power of willing is the real magic, according to KCB, are obtained only to be renounced. Only to be renounced. In this respect, KCB, in fact, takes issue with Patanjali's depiction of the CDs as obstacles on the way to samadhi. They are not obstacles, but a necessary precondition for the attainment of samadhi. The retraction, as KCB puts it, paves the way to samadhi. This is what Da Krishna depicts as KCB's inverted Hegelian dialectic rooted in Sankhya. An interesting phrase. KCB's inverted Hegelian dialectic rooted in Sankhya of thesis, here willing, antithesis, the willing not to will, and moving forward beyond the two, which is in fact a matter of going back to the origin, the source of both. 2 minutes on politics, or if you wish, decolonization. KCB's rendering of dukkha, now I'm talking about a chapter called Pain as Evil, chapter 1 of Studies in Sankhya Philosophy. KCB's rendering of dukkha as evil, which is in this chapter, which is his commentary on Sankhya Karika 1.1, the 3 types of dukkha, is an example of counter-translation, not from European philosophy to our native ideas, KCB's phrase, meaning Indian terminology, but of an essential Sanskrit notion, dukkha, into Western terms and Western discourse, with its Judeo-Christian theological overtones. KCB's translation choice, evil, not suffering, invites further reflection. My last contention for today, now I'm commenting on KCB's Swarajin ideas and his studies in Sankhya philosophy as a single whole, is that since colonialism is evil, and since the antonym of evil, according to KCB, as he clarifies in the final sentence of his chapter, is not the good, but freedom. The antonym of evil is not the good, but freedom. And since freedom for him is not just a metaphysical ideal, as in classical Sankhya, but also a political goal, then if we read KCB's studies in Sankhya philosophy vis-a-vis his own Swarajin ideas, it would not be far-fetched to suggest that KCB, the translator, adds political overtones to the standard reading of Sankhya. He brings a classical discourse down to earth, revealing its subtle political relevance. If this is the case, then Kaivalya, the Sankhyan concept of freedom, can be rendered as independence, and more literally, as referring to apartness and separation from the British rule, both external and internal.
Colonialism operates from outside in, from political oppression to the occupation. Macaulay and KCB from both sides of the colonial border would agree, of mind and soul. Freedom, on the other hand, from Sankhya philosophy to KCB's Swarajin ideas emanates from inside out. Thank you. Thank you so much, Professor Rave, for your short but all-inclusive inaugural speech and showing the points of the difference between the Sankhya and Yoga philosophies and their link they share. In the same line, we have with us Dr. Pratibha Graman. She is Doctor of Psychology, Consciousness, and Spirituality, and affiliated to Danza, Truman State University, Saybrook University, San Jose, Los Gatos, CA. She runs life coaching, guidance, and breath work. I invite Dr. Pratibha Graman to deliver a special speech based on the theme. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much for your introduction. And I too will talk about Sankhya. I did send a copy of my slides. And if you could show them, that would be great. But I don't think we have this all arranged. I didn't upload them. I guess I didn't really, I don't know, get into that. I don't think you can see this, but so I will just begin. I have titled though. Can anybody see this actually? You could just tell me if you can see. No. Okay. So I have titled my talk, Sankhya, Yoga, and Transformation. I have personally gotten very much inspiration from Sankhya. I have studied it for a long time. I studied it with my guru teacher and in depth. So I'm going to begin with description of, as you know, consciousness and Prakriti, or consciousness given the name of Purush, and the Prakriti having the name of materiality or nature. And my understanding of consciousness is that it has nothing in it. And it is used in many ways nowadays, so to speak, to describe that it has something in it. But according to the Sankhya Karika, there is nothing in consciousness. And consciousness has the function of illumination and giving life to the materiality. It can be likened to the sun, in that the sun shines upon the earth and gives life to the plants and to we humans, to every form, and whether it's organic or inorganic. But there is nothing in consciousness except that it illuminates and it gives life. This is really an example. It is striking. But it's if you happen to look at it this way, when a person dies, what is it that leaves? What causes this death? Well, according to Sankhya, it is that the consciousness leaves the body. So there's the materiality, of course, of the body. And now it has no life in it because the consciousness, which is described as in the body as a small cup or few drops that resides in the center of our beingness, near the heart. And this is pulled out or carried, so to speak, by the breath, by the 5 vayus that exist in the body. So that is the end of it, to show, that the differences
So really, Sankhya is all about the gunas, and the gunas can be very interesting and used even as a psychology. This is something I will get into. But my second point I really wanted to make is to show a little difference between Sankhya and Vedanta. I guess everyone can hear me okay, right? So my understanding here, is that Vedanta claims that we have illusion, and that we are illusion, that we really reside in permanency within consciousness, or within Purush. So the life that we live is an illusion. It is temporary. It is temporary. We know that. And the permanency resides of the materiality in the consciousness. But and we often hear that life and us are the Maya and illusion. Sankhya, on the other hand, has the concept clearly stated that consciousness has nothing in it, and that consciousness is not material at all, but consciousness is the principle, like I explained, that gives life. It is life itself, and it is ever present, eternal, and always is on, so to speak. It's always shining. It's always illuminating, giving life. The material is, of course, from Prakriti, and these two work together, but they are never mixed. Never mixed. So the materiality has many dimensions that we would talk about, and that's where I try to go to next. We call of these, of course, the three gunas. And the three gunas are Sato Guna, Rajoguna, and Tamoguna, which I'm sure you've all heard of before. I have one picture I don't think you can see. The Sattva is referred to as the revealing power. It is equated with light and clarity and inspiration and pleasantness and happiness that comes to our lives. Whereas the Rajasic is equated with action, and every movement of any type is considered to be within the realm of the Rajas guna. Then the third one is the Tamo guna, and the Tamasic guna is the opposite of what exists in the light or the Sattva guna. It is a darkness, a density, ignorance, and all the things that basically make obstacles to our life. But my understanding, it gives a couple of things. That is something we need, or maybe more than that. But those two things are, it gives stability. And the others do not give that stability. We get that stability from the Tamoguna. And we get a firmness from Tamoguna. And to describe them further, as I've read about these, really there's not, the Sattva guna is more of a stationary force. And the Tamoguna is also a stationary force. And it is really by the actions of magnetics that the Rajoguna continually moves between them. I have also come to learn that it is like Rajoguna, in a way, trying to make an equilibrium.
But there is no equilibrium that will ever be made as long as the world is existing. That it will occur when there's pradhan, when there is no earth. But this is how these work. One more great principle is that with the Satoguna, it is full of all the qualities I mentioned, including light and all. And so it is closest to the closest to consciousness, so to speak. So if one increases consciousness in their life, in their mind, then they are getting closer to consciousness. With the Satoguna, it's necessary. And it is also claimed in yoga that when you want to make changes, you need to increase your Satoguna. You need to increase the sattva in you. So that can be very interesting to reflect on. And I'm going to move on to Prakriti and physics. So these three gunas is interesting to look at also. If you look at the three basic qualities, the three basic principles that are in physics. So physics gives a credence to light and kinetics and to inertia. So you can see it right away. What I'm saying here is that the Satoguna is equivalent to the light that we all experience, the light of the day. If we didn't have it, we wouldn't be here long. And the kinetics, well, there's a whole range of anything that moves that physics considers to be kinetics. In the Rajoguna, it is also considered to be everything. Then with the Tamoguna, that is a solid, a density, and so on. And in the physics, they consider the inertia, the third principle, basic principle of physics. So the question is it all the same? It's a very wonderful question. It's really a wonderful question. And so then I want to go back a little bit to where the beginning of Sankhya came. I understand that Sankhya was written by the sage Rishi Kapila or Kapil, and it was written maybe or approximately 200 years prior to Gautama the Buddha. And it is interesting that Buddha used totally only, this was his whole philosophy that he taught, the way of life and everything. And if you study and you look at both, it seems to be the case. So this, idea also of final liberation and enlightenment and all were large principles that Buddha talked about. And that's very much into, as I studied the Karika. So I just leave that idea. I could say my own question was Gautama the Buddha Kapila? Okay, so I want to talk now like how creation evolved. And it's not different actually than the way things actually go now. So creation began as the gunas were in equilibrium when there was no earth, at least over and over again, supposedly happens. The earth is created, it
starts to decline, which we are unfortunately starting to decline now for sure. And then it comes to an end. There's pradhan, which is the time when the three gunas are in equilibrium. So the next creation comes when they fall out of equilibrium. The question is, what makes them fall out? Well, because of the grace or the illumination of consciousness that is constantly falling onto the earth. Somehow one of the gunas fell out of place. You can make your own speculation, but it might be reasonable that maybe it was the middle one, Rajas, because that is the one that's the most active. Anyway, what is the first thing that was created when the gunas again made the creation? But always consciousness is giving the energy, the vital energy, sending the grace, the light, the illumination that is needed for the life to be expressed in the gunas, which is also true always with us. Okay, so what is the first thing? Was the principle called Mahat, or Mahat, M-A-H-A-T. And this principle, as I understand it, can be described 2 or 3 different ways. They all go together. One of them being the subtle sense of I, meaning that sense that we are alive, we have a life. But there is not identification with this first sense with objects of the materiality. It is simply the sense of, also called asmita. Now, then there's another way to explain, which can be coordinated with this, is that sense I just described is also the very most subtle sense of the gunas, not the gunas, but the 5 senses, the 5 elements is what I want to say, the 5 elements. So their subtleness is not something in this subtle state that we would see. I'm suggesting, is with science, this is just a proposition. Maybe this is like the state that is the atomic state of the elements, which is, of course, the space or akash, followed by air, and then there's fire, and there's water, and earth. And earth contains all of them. So that is how the creation began. The second manifestation comes as the I sense that I just referred to becomes more dense. In other words, it takes on more attractedness with the materiality. And as it takes on more of the materiality, this I sense becomes ego or ahamkar. So this is the difference that is made here, that the ego is when the ahamkar has attachment. It's related to something that is with object and materiality. Okay, so this is, I would consider, as the second manifestation. And the third manifestation I want to point out, I'm calling it as the mind now has been created. So what does the mind consist of? Well, the mind consists of the senses, which comes from the elements, right? All of the senses come from the elements, and that's pretty obvious. Then there is already, by its initial creation that falls out, the buddhi is already acting. So this is
the buddhi, and then also the intellect, or I am considering the buddhi as like the sattvic intellect. And then there is more intellect there's intellect in everything. With the way things work, they work on their own, or we as humans are the only ones who can direct, because we have the most evolved intellect, as well as the most evolved everything. And so anyway, the third point is that is the ego. So the mind consists of the senses. It consists of the intellect, and it consists of the ego. Basically, we can look at the senses as, you can see something outside, or you can be thinking of something inside. In either case, the size or the color or just the thought alone comes to your mind. So this is what is called the recording mind, done by the senses. They always work together, but then for understanding it, it can be meaningful to see these separate. The senses then, or what is being brought to your mind, is identified by the intellect. And the intellect, besides identifying, it analyzes, right? The third part of the mind is then the ahamkar. What is the function of the ahamkar? The function of the ego, it either agrees and, carries out what has been presented by the intellect, or it does not. So it, it affirms or it does not affirm, basically. Okay, so, there are other names for the mind, to say a little more on the mind. There's one more part of the mind that has not been mentioned, and that's the chitta. And this, I have the understanding, it shows the relationship to the gunas. By that I mean, if the content of the mind is more sattvic, that relates to sattva-guna. And just following the same way, if the content of the mind is related more to something active, this is more rajasic, and the tamasic. And also, it's very, very significant to realize or see that these three gunas always work together. They too are never separate. I mean, this movement between them continues on and on. And also, one of the gunas is always dominant, and the other two support it. I'll give some examples on that later. So, Ma'am, some- may you please conclude so that we could have some question answer session as well? Yeah, I would love, happy to have questions. So, yeah, let me just do that. And I was going to make one point more about what gives this difference between people. If the same stuff is coming from the gunas, that which makes things work different is the form. It's the form of whether it's human, that's why we have the higher intellect, because we are that form. And the same with whether it's plants or whether it's other creatures. Yes, I think I can just stop there. That's great. And Okay, thank you. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thanks for this wonderful talk, reflecting upon the differences between the Sankhya and do you Vedanta. think I'd like to see if anyone would like to debate or comment or have any question. Yeah, sure, ma'am. So now, audiences, if you have any question, you may directly ask to our speakers.
Is there anyone? Okay, then may I take up a few questions from the chat box? Oh, sure. I think there is one or no, there are two questions, and both are, I think, related to Professor Daniel Rave's speech. Sure. Sure. Somebody has asked, according to Daya Krishna, what are the limitations of the inward look? The same look, which, if I understood correctly, Patanjali sees no limitations. Professor Rave, would you like to respond? You're not audible, sir. May you please unmute yourself first? Professor Rave, you are not audible to us. Yes, okay. Yeah, you are So now. it's a good question. Actually, what I tried to do was to present to you three contemporary readings of Patanjali: KCB's reading, Daya Krishna's reading, and Pradeep Gokhale's reading. This was my overall project. Now, when Dayaji basically philosophically attacks both Patanjali and KCB, is doing it by attacking the notion of nivriti. Nivriti as withdrawal. And as the person who asked the question, Alon said, according to KCB and according to Patanjali, nivriti has no limitations. But Daya Krishna suggests that not only pravriti has its limitations that we can think of easily, but also nivriti, and the limitation is the structure of consciousness and self-consciousness alone. The way that our consciousness operates, the operating system, is the limitation of nivriti according to Dayaji. I also wanted to ask, I saw that in the chat box, someone said that it was unfair to confine my discussion on yoga to KCB, and I didn't understand why. Yeah. Thank you, sir. And Domandal Pramod, I think he wants to ask a question to Dr. Pratibha. Sure. Good morning, madam. Are you here? Yes. Are you able to hear, madam? Hello? Domandal Pramod ji, please unmute yourself and talk to our speaker directly. Yeah. Good morning, madam. You are you're on mute. Hello. So you are not audible properly. You may remove your headphone. Maybe there is some issue. No, it's Hello. Are you we can't hear you. Remove your headphone, please. Maybe then we can listen to you properly. Hello. We can't hear you. Can you hear, madam? It's a little better. Not audible. Hello. This is Pramod speaking from Hyderabad. Are you able to hear, madam? A little bit, yeah, a little bit. I want to know that the sattva guna is decreasing day by day. It is because of the so many factors, and in the future there will be no sattvic people. All tamogonic people may come. My question. Okay, well, actually, that's a very interesting question. You know, of course, each person is responsible for trying to create more. We have to do that to create more sattva in ourselves by increasing the qualities that define sattva. But, you know, I have thought about this too, and that, you know, I think when the earth was created, it was very sattvic. And since there is always a balance in some way, you know, I'm just saying maybe this is what's going to make the heart of the planet when it totally disintegrates, is that it will be not sattva dominant. It will be very hard to be sattvic. It will be tamasic dominant. And this is possible because then this is the way nature works. You know, there is always a certain kind of balance between sattva and tamasic.
you know, it's almost, it's kind of like half the world is happy and the other half is in hell. My question is nowadays because sattvic people not being generated, not being born at all, and lot of people are only tamasic people are coming. Tamasic activities, tamasic food, and everything. Well, you tamasic see, flavor. that's what I'm saying, Yeah. is that this should I say, what is the word? You know, there is a more, there are going to be now, from now on, more tamasic Tamas. dominance occurring, not in many ways. Anyway, yeah. Yeah. I mean, this is the way the rules work. You know, I mean, this is the way nature, this is the way, you know, the phenomena of the earth occurs. So, I mean, there will be extreme suffering, extreme, to the point where, you know, if you haven't liberated, you wish you had. You wish you had put every effort into it to liberate your soul, you know, because you don't want to be having birth after birth when the earth is so much in deterioration. Yeah, that's what I'm going. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Dr. Pratibha and Professor Rave. And now for the presidential remark, I would like to invite Sir Professor S.R. Bhatt, former professor and head Department of Philosophy, Delhi University, and former chairman of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. Over to you, sir. Thank you, madam. Let me also welcome all the distinguished scholars who are participating in the celebration of International Yoga Day. I congratulate the head of the department, Professor Ananda Mishra, for making this department vibrant and dynamic. The theme of today's deliberation is very much both theoretical as well as practical. The Sankhya system provides the theoretical background, and the yoga system gives us its practical counterpart. And therefore, a symbiosis of the two is the need of the day. Professor Daniel Rave has presented a very good survey of the Sankhya system and the yoga system also, taking into account the Buddhist position as presented by Professor Pradeep Gokhale. But from Tripitaka, we learned that yoga system was prior to Buddhism, and Buddha tried to study Buddhism, yoga through Alar Kalam, who was a yoga teacher. And therefore, we have to put the record straight. Of course, you can say that the yoga system of Kapil Muni has, the Sankhya system of Kapil Muni has influenced
Buddhist thought. He has also referred to the Jain tradition, particularly the Haribhadra, and also referred to again the Buddhist position as presented by Shantarakshita and Kamal Sheel. So it's a good survey that he did of the classical position. And then he touched upon the modern position as well, represented by K.C. Bhattacharya, Daya Krishna, and some other scholars. He particularly dwelt upon the concept of Ishwar Pranidhan. And I would like to say something on that subsequently. He argued, following K.C. Bhattacharya, that it is the willing aspect which is basic in the yoga practice. But this is not in accordance with the tradition. In the tradition, it is not willing, it is not the willing part, but it is the luminosity. That means self-awareness, which is central to Buddhist, central to Sankhya and yoga system. This self-awareness is a differentiation, viveka, of the self from the not self. In the Sankhya Karika, we have Name, Nasmi, Naham. So this clearly differentiates the Purusha from Prakriti. In the yoga system also, we have Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam. So it is a self-situatedness, self-realization. So that is central, not just the willing part of it. Of course, one may give one's own interpretation, but the central point, the focal point in the Sankhya system and also in the yoga system is self-realization. And that self-realization is a sort of a differentiation from not self. Sankhya system has been a very significant system of Indian thought. Let me narrate what Larson has written in his introduction to two books which he has authored. He says that as a young scholar, he went to Varanasi and visited at that time we had Gopinath Kaviraj, who was a doyen among the scholars. So Kavirajji asked him, what is he doing? Larson said, I am reading and working on one of the schools of Indian thought. Pandit Gopinath Kaviraj corrected him, saying, no, Sankhya is the only system. Not one of the systems, but the system. And we find that there has been an all-pervasive influence of the Sankhya system in the different schools of thought, in different domains of knowledge. So we have therefore Proto-Sankhya. Larson has made this classification, Proto-Sankhya, which is there in rudimentary form in the Upanishads,
which is also there in the Bhagavad Gita. And then he talks of pre-classical Sankhya. And this pre-classical Sankhya is available in Mahabharata, in both in the Narayani Parva of Shanti section of the Shanti Parva. It is also available in the Moksha Dharma Prakara, Moksha Parva of Mahabharata. But we do have very good account of the Sankhya system in Pancharatra Samhitas. Generally, we don't take that into account, but Pancharatra Samhitas discuss Sankhya system in great detail. So also the Puranas. And therefore, the Sankhya system is very much influencing different modes of thinking and different type of knowledge domains also. But most important influence of Sankhya is on yoga, on tantra, and on Ayurveda. In Ayurveda, particularly Charaka discusses it. Of course, Kotil makes a reference, brief reference, but doesn't dwell upon it. But in Charaka Samhita, we have detailed discussion of the Sankhya Yoga tradition, and it is a combined tradition, symbiotic. We don't say Sankhya tradition or Yoga tradition, the Sankhya Yoga tradition. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that it is the ignorant people who say Sankhya and Yoga are different. Sankhya, Yoga, Pratak, iti balaha pravodanti, na panditaha. Wise people don't make that particular distinction. So, Sankhya and Yoga, they go together. They should be studied in their symbiotic form. Now, so far as Sankhya system is concerned, it has two traditions. One is the what is known as Seshwar Sankhya, and the other is the Nirishwar Sankhya. Seshwar Sankhya is there already in the Mahabharata, in the Bhagavad Gita, and others. And the other tradition, Nirishwar one, was later on expounded by Ishwar Krishna. So, we must therefore make a clear distinction between the two traditions, Seshwar and Nirishwar. Sankhya Karika is not the sole representative of the Sankhya system. Of course, it's very popular text because of its lucidity and also brevity, but it is not the sole representative of the Sankhya system, and that is why Vijnana Bhikshu Vachaspati Mishra has commented on Sankhya Karika. But Vijnana Bhikshu differs and he restores the ancient Seshwar Sankhya. His Sankhya Pravachan Sutra Bhashya. Has to be room for debate, right? Eh? I said there has to be room for some debate. Then they can debate the Yeah. Yeah. In the Sankhya system, therefore, Sir, if you want, you can conclude here. You're not feeling well, as we can see. similarly, when we come to yoga,
yoga system also has three facets. Generally, we understand yoga as a yoga chittavritti nirodha. This is the negative part of it. We may call it as a lakshana definition of the sadhana yoga. But real yoga is tada drashtuhu swarupe avasthanam. That is the sadhya yoga. So we should have a balancing approach to yoga system, not just concentrate on chittavritti nirodha, but also take into account the realization that we have after chittavritti nirodha. Another thing I would like to point out, and that is yam, niyam, asan, pranayam, they are bahiranga. This is the official position. So they are only at the prophetic level. They are not antaranga. They are not the essence of yoga. The essence of yoga is samadhi only. And I can't therefore, hear you clearly. I can't hear you clearly. my point is that it is the samadhi part of it. Yes, but you have to do things to get there, so we have to begin with the yam, niyam, asan, pranayam, etc. But they are not the end of a yoga. Oh yes, of course, that's right. Exactly. So we have to go beyond. These days, we are only concentrating on asana and pranayam. See, this is just another example. Oh, well, you need to do the pranayam because you That need is to work true. with the vayus. You have to do that. So You have to do that. they You are can't take they are they are only. initial steps, not the No, they're final not steps. just. It's the samadhis that lead to the. So we should I mean, concentrate they on support your getting there. only in samadhi we have this self-realization, which is the ultimate goal of both Sankhya and the yoga system. Anyway, Yeah. we have a galaxy of scholars who will be making their position. I would like that let them also touch upon this point, which Gopinath Kaviraj has said, that Sankhya is the system. And Gopinath Kaviraj is not an ordinary scholar. So when he makes this particular assertion, well, it needs to be pondered over as to what is the pervasive influence of Sankhya system on Indian thought. So anyway, it's a good occasion to have this international webinar to celebrate International Yoga Day. And once again, I offer my thanks to Professor Daniel Ravi for a very exhaustive treatment, and also to Professor Pratibhaji for comparing, say, these gunas from a from the perspective of physics. So it is a very good idea that she has put forth. Thank you, sir. Thank you so much. I thank Professor Ananda Mishra for giving me this opportunity to say a few words about the Sankhya Yoga tradition. Thank you very much. Thanks a lot, sir. We are glad to have you here with us. And now, for the formal vote of thanks, I request Dr. Kalpana Yadav, Assistant Professor here. Dr. Kalpana, please. Thank you, Dr. Niti, for giving me this opportunity on the behalf of the department. I'm Dr. Kalpana Yadav, Assistant Professor.
Department of Philosophy and Religion, Banaras Hindu University. So first, I would like to express my deep thanks to Professor Daniel Rave sir, who has presented pervasive perspective regarding yoga. And second, I would like to express my profound gratitude to Pratibha ma'am, Pratibha Graman ma'am, for your informative talk. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I would like to thank Chairman of this session, Professor S.R. Bhatt, for your outstanding remarks. Thank you, sir. Next, I express my deep thanks to Head of the Department, Professor Anand Mishra, sir, faculty members from our department and other universities, scholars and students. I express my deep thanks to all of you for joining us today. Thank you so much to all of you. Thanks to you as well, ma'am. Now, with the permission of the chair, I announce the end of this session here and request to the convener of the program, Dr. Shruti Mishra, to proceed with the next session. Thank you so much, one and all. And please be with us, all the online participants. Don't leave us. बहुत बहुत धन्यवाद नीति। तो प्रथम सत्र का समापन हो चुका है, द्वितीय सत्र में हमने प्रवेश कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष अवसर पर अपराह्न की ओर बढ़ती हुई इस वेला में आप सभी का स्वागत है और आप सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन। और हमारे सम्मानित जितने भी अतिथिगण हैं हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी मंचासीन हो और हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी, परमादरणीय प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी, प्रोफेसर कृपा शंकर जी, प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी, और साथ ही मैं विभागाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूंगी कि आप भी मंचासीन हो। Can we talk during this intermission? Maybe not. प्रथम सत्र में आपने हमारे विदेशी विद्वानों को सुना। मैडम प्रतिभा ग्रामन जो यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सर डेनियल जो इजराइल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी हैं हमारे साथ। ये बहुत ही विशेष अवसर है जब देखिए हमारे अन्य अतिथि डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी भी उपस्थित हो चुके हैं और मैं आग्रह करूंगी कि आप भी मंचासीन हों कृपया। For me, you have to speak in English. जी, तो पुनः सभी का स्वागत करते हुए एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति की अलख योग और दर्शन जो है वो वस्तुतः हमारी धरा की उपज है और उसकी अलख विदेशी विद्वान अपनी धरा पर जला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम नमन करते हैं आपको, आपने ये बीड़ा उठाया है और विशेष रूप से जब हम भारतीय जाकर के विदेशों में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जब हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर के अगर कोई विदेशी विद्वान अपनी धरा पर यह कार्य करता है तो हमारे लिए बहुत ही वरेण्य हो जाता है। तो पुनः पुनः आपका अभिनंदन मैं करती हूँ। और चूंकि जिसको हम कहते हैं कि अल्पाहार और टी ब्रेक जो है वो उसके लिए अलग से समय उपलब्ध नहीं है, अभी ही है, तो तथापि मैं आग्रह करूंगी कि इसी क्रम में माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और साथ साथ हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित सदस्य हैं हमारे बीच
प्रोफेसर एस विजय कुमार उपस्थित हो चुके हैं, हमारे विभाग के पूर्व आचार्य मैं आग्रह करूंगी हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी से कि क्रमशः हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी, परमादरणीय प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि वो माल्यार्पण और दुशाले के द्वारा आचार्य का स्वागत करें और साथ ही आप करतल ध्वनि से इस सत्र के उत्साह को बनाए रखें, बढ़ाए रखें, मेरा आग्रह है। विभागाध्यक्ष महोदय, चूंकि आप जी जी मैं तो डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी भी वहीं पर हैं, मैं आग्रह करूंगी आचार्य एस विजय कुमार सर से, ये तो अपने ही हैं, तो अतिथियों का स्वागत कृपया मैं आग्रह करूंगी कि बीता हुआ कुछ नहीं है सर, आइए। नहीं नहीं, यहाँ सर किस लिए उपस्थित हुए हैं? हम लोगों के लिए ही तो, उत्साहवर्धन के लिए ही तो। विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर एस पी पांडे जी से मेरा आग्रह है कि वे प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी का स्वागत करें। साथ ही साथ आदरणीय प्रोफेसर कृपा शंकर जी भी उपस्थित हैं, तो आप उनका भी स्वागत करें। प्रोफेसर कृपा शंकर सर, जिन्हें हम लोग ओझा सर के नाम से ज्यादा जानते हैं, और सांख्य के अगर दर्शन एवं धर्म विभाग में कोई पर्याय रहे हैं तो आचार्य रहे। संस्कृत विद्या धर्म संकाय से पधारे डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी। मंच पर उपस्थित जितने भी विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर हमने सांख्य और योग यही अपनी चर्चा का विषय रखा था। तो ये जो 5 विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं, आप कह सकते हैं कि ये सांख्य और योग के पर्याय हैं। सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से इन सभी ने सांख्य को एक तरीके से, योग को एक तरीके से अपने जीवन में जिया है और निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ से आरंभ करूं, ये मेरे लिए दुविधा की बात है, लेकिन फिर भी इस मंच के सर्वाधिक युवा वक्ता डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय से पधारे हैं और वैदिक धर्म दर्शन विभाग के सांख्य योग पद पर ही यह उपाचार्य पद को सुशोभित करते हैं, और योग को इन्होंने न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि प्रायोगिक रूप से बहुत कर्मठता के साथ उसकी अलग अपने विभाग में, अपने संकाय में इन्होंने जला रखी है। और अभी अभी ये समापन करके आए हैं 15 दिवसीय योग की एक कार्यशाला का, और विक्रम कालिदास पुरस्कार से सम्मानित 55 से अधिक शोध पत्र, 15 वर्षों से अधिक का
अनुभव, अध्यापन का अनुभव, 5 संपादित पुस्तकें और 81 से अधिक संगोष्ठियों में वाचित पत्र, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि बायोडाटा रखते हैं। और मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी से कि वे योग के संदर्भ में जो दिन प्रतिदिन का अहर्निश जो ये कर्मठता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को भी अपने अनुभव से परिचित कराएं, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी संस्कृत विद्या धर्म संकाय के सांख्य योग, वैदिक धर्म दर्शन विभाग के सांख्य योग पद पर उपाचार्य हैं। स्वागत है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आदरणीय मंचासीन इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा जी, बाकी हमारे 2 गुरु जी, नाम हम नहीं लेंगे, हम आपके चरणों में बैठ के जो हम यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बीए कक्षा में जब हम सब्सिडरी लेकर के दर्शन विषय लेकर पढ़ते थे, तब हमको ओझा सर का और चौबे सर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम यहीं के पढ़े हैं, आपके बीच से ही निकले हैं। और हमारी श्रुति जी और विभागाध्यक्ष बड़े भाई आनंद मिश्र जी, आदरणीय गुरु जी और प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुतः हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, यह अच्छा है, उपक्रम अच्छा है। हमारे यहाँ अभी समापन नहीं हुआ है, श्रुति जी ने कह दिया कि समापन अभी हमारा 2 बजे से कार्यक्रम हमारे हेड साहब ने तय किया है, 2 बजे हम लोग समापन करेंगे। जी जी जी। और हम लोग सुबह इस बार प्रायोगिक पक्ष को लेकर के हम लोगों ने कार्यशाला रखी और प्रातःकाल संकाय के प्रांगण में ही हम लोग कार्यशाला करते रहे और अच्छी कार्यशाला रही। छात्रों के बीच में ही, छात्रों के द्वारा ही वह संचालित हुई। कुछ विशिष्ट विद्वान भी उसमें बीच बीच में पधारते रहे, उनका भी उद्बोधन मिलता रहा। सांख्य योग की बात जब हो तो 1 कहा जाए या 2 कहा जाए, आपके जो विषय दिया है सांख्य सांख्य तथा योग, सांख्य तथा योग, जी जी। तो सांख्य और योग के विषय को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो 2 देखने में लगता है कि 2 शब्द मिल गए आपको, तो सांख्य एक अलग धारा चलती है, योग की एक अलग धारा चलती है, ऐसा नहीं है। उन्हीं तत्वों को लेकर के योग निरूपित करता है। योग के जो लक्षण पतंजलि ने कहे, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, और फिर आगे तदादष्टो स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अर्थात जो पुरुष है उसका वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। यह अगर लक्षण देखें तो यह सांख्य परक अगर घटाना चाहें तो थोड़ी सी विप्रतिपत्ति हम लोगों को लगती है। जैसे सांख्य में देखें तो सांकारिकाकार कहते हैं अपवर्ग, जहाँ स्वरूप बताया ज्ञाने न चापवर्ग, ज्ञान से वह अपवर्ग की स्थिति बताते हैं। और यहाँ एक ऐसी अवस्था का निरूपण कर रहे हैं चित्त की, जहाँ ज्ञान को भी छोड़ना है, उसका भी निरोध करना है। तो दो अलग चीजें निकल करके आती हैं कैवल्य की, यहाँ जो स्थिति जो लक्षण बने और वहाँ जो कैवल्य ज्ञान से जो ज्ञाने न चापवर्ग विपर्य रिश्यते बंध, यह जो कारिका कहती है, तो विपर्य से बंद होता है और प्रकृति को मोक्ष होता है, ये कैवल्य होता है। यह सब चीज़ें तो हैं ही, वो यहाँ भी हैं, लेकिन यह 2 विपरीत चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और योग सूत्र को देखें तो अगर सूत्र शैली है लिखी हुई, सूत्र शैली का यह प्रभाव होता है कि यह एक बार सूत्र आ गया, एक बार आ गया निरूपण उसका, जैसे ईश्वर का निरूपण है, एक बार प्रथम पाद में, फिर द्वितीय पाद में 2 बार, एक बार क्रिया योग के पक्ष में,
एक बार फिर जब हम यम नियमों की चर्चा अष्टांग योग की करते हैं, वहाँ भी ईश्वर प्रणिधान आता है। तो ये 3-3 बार ईश्वर प्रणिधान करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह भी विद्वानों के बीच विचारणीय होना चाहिए। यह यहाँ सब हमारे गुरुजन उपलब्ध हैं। हम अल्पमति इतना इस पर विचार कर पाए हैं, वह गुरुजनों के सम्मुख ही कहने पर वह ज्ञान पुष्ट होता है, ऐसा हमको लगता है। तो कुछ कहेंगे। व्यास भाष्यकार जैसा कि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध के प्रसंग में ही ये एकाग्र और निरुद्ध, यह दो अवस्थाएं जो चित्त की भूमियां जो हैं, इसी दो भूमियों में ही आपको समाधि प्राप्त होती है। बाकी जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इत्यादि जो भूमियां हैं, उसमें उन्हीं का प्राबल्य होता है। क्षिप्तादि के प्राबल्य से वह जो समाधि वहाँ भी है, वहाँ भी होती है, लेकिन गौणभूत हो जाती है, प्रधान नहीं होती। जहाँ प्रधान होता है उसी का व्यवहार लोक में देखा जाता है। जहाँ गौड़ हो जाती है जो वस्तुएं, वह दब जाती हैं। तो वही जो साहित्य की परंपरा है या जो अन्य शास्त्रों की जो परंपरा है, उसी परंपरा को लेकर के यहाँ भी उसी तरह से भाष्यकार कहते हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इत्यादि के प्रसंग में। फिर यह होने के बाद फिर एकाग्र और निरुद्ध, यही दो अवस्थाओं में योग होगा। वो पंक्ति है, विक्षेप विक्षेप विक्षेपोपसर्जनी भूतः न समाधि समाधि पक्षे उपलब्ध थे, ऐसा करके पंक्ति व्यास की है। वह कहते हैं कि विक्षेप का उपसर्जनी भूत हो, विक्षेप की प्रधानता हो गई, इसलिए यह समाधि के पक्ष में इसको हम घटित नहीं कर सकते। और 3-3 बार जो ईश्वर कहने का तात्पर्य है, वही पहले उत्तम कोटि के जो साधक हैं, जो जिनकी आपकी कह सकते हैं सत्व गुण जिनका प्रबल है, ऐसे साधकों के लिए बताया कि आप अभ्यास वैराग्य से उनका निरोध कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्य कह देने मात्र से ही अभ्यास वैराग्य करना सबके बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्रिया योग का जो निरूपण किया द्वितीय पाद में, वह मध्यम कोटि के जो साधक हैं, जो रजोगुणी हैं, ऐसे साधकों के लिए, और जो अत्यंत तमोगुणी हैं, हम लोग जैसे लोक में लगे हुए हैं, ऐसे साधकों के लिए अष्टांग योग का निरूपण किया तमोगुण वालों के लिए। और सभी के लिए ईश्वर भक्ति सभी को अभीष्ट है, चाहे वह सत्वगुण का हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ही सूत्र में कहा ईश्वर प्रणिधानाद वा, विकल्प से समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती है। तो वह समाधि लाभ और समाधि फल जो है, वह सभी साधकों के लिए हो, केवल एक सत्वगुण संपन्न साधकों के लिए क्यों हो, रजोगुण संपन्न के लिए ही क्यों हो। तो ऐसा करने से वह भेद वहाँ कर लेते हैं, इसीलिए 3-3 प्रथाओं का प्रचलन किया। लेकिन अभी लोक में हठयोग का प्रचार बहुत हो गया। हठयोग की भी पद्धति यह अपनी अलग है, लेकिन वही मार्ग वही है, वहीं पहुँचाता है, राजयोग की पद्धति में ही ले जाता है। उसमें क्या है, इसमें तो कहते हैं आसन ही प्रथम अंग है, वहाँ तो यम नियम तमोगुणियों के लिए बता दिया, यहाँ कहा कि नहीं, आसन सब लोग आसन करिए, बाकी कुछ नहीं, पहले आसन करिए। हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्व मुच्यते, ऐसी हठयोग प्रदीपकार का वचन है। तो हठ ही प्रथम, हठयोग का प्रथम अंग। हठ माने जबरदस्ती नहीं, हठ माने हकारः कीर्तितः सूर्यः हकारश्चंद्र उच्यते। तो यह जो हमारी दो नासिका छिद्र हैं, जिनसे हमारी यह मध्य से आप एक जो कुंडलनी शक्ति देखते हैं, कुंडलनी का जो निरूपण करते हैं, वो एक सर्पेंटाइल आकार में घूमती हुई जाती है। तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट होती है, वहाँ वहाँ चक्रों की स्थिति है। और जहाँ से वह, यहाँ से दोनों नासिका छिद्रों से, एक दक्षिण है एक वाम है, दक्षिण नासा छिद्र को आप पिंगला कहते हैं या सूर्य नाड़ी उसको कहते हैं। जो वाम नासा छिद्र है, इसको हम ईड़ा या चंद्र नाड़ी कहते हैं। और सूर्य चंद्र के जो भी स्वभाव हैं लोक में, वह सब इन नाड़ियों के भी स्वभाव हैं। जैसा सूर्य आपको देखता है, गर्मी होती है सूर्य से, उसी तरह अगर पिंगला चल रही है तो आपके शरीर में उष्मा का अनुभव होगा, पीड़ा चल रही है तो ठंडक का अनुभव होगा, इत्यादि इत्यादि बहुत से आप अपने कल्पना कर सकते हैं। फिर इसको ज्योतिष शास्त्र ने लिया तो अपने आधार पर इसका निरूपण किया कि आप मुहूर्तों का विचार भी इन्हीं स्वरों के आधार पर ज्योतिष ने किया। बहुत से मुहूर्तों का विचार किया, वो एक पुस्तक ही लिखी गई इस पर। तो वहाँ भी हठ में, हठ का मार्ग जो है, यह भी विधा वही ले जाती है, लेकिन इसमें दो ही मुख्य बताते हैं, एक आसन, दूसरा प्राणायाम।
प्राणायाम में ही अपने आप वो आगे प्रत्याहार बताए कि रिसट के ना, हाँ प्रत्याहार हो जाएगा। अभी यही प्राणायाम अगर और काल तक लग जाए तो धारणा, फिर ध्यान और समाधि, ऐसा करके निरूपण शास्त्रों में मिलता है कि काल गणना से उसको ले लिया कि आप प्राणायाम अगर इतने काल तक होता है तो प्रत्याहार, यही प्राणायाम की विधि बताई। प्राणायाम कब करें, प्राणायाम में उंगलियों को पकड़ने की कैसी, तो कहते हैं तर्जनी मध्यमा मीना, ये 2 उंगलियां नहीं यूज करें नाक पे, तो इनको या तो मोड़ के करेंगे, या तो जो नए साधक हैं नहीं कर पाते हैं तो बिहार स्कूल ऑफ योगा ने कहा कि इसको यहाँ फोरहेड पे रख लीजिए, तो नहीं मुड़ पाती उनकी उंगली। विदेश से आते हैं नहीं मोड़ पाते हैं, तो यहाँ वाले तो मोड़ लेते हैं, तो कहें कि ये 2 में मोड़ लीजिए, ये पकड़ के करिए आप नासिका को। तो इसकी सभी की विधि है। आप तंत्र में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी यह विधि मिलेगी। यह हठ योग प्रदीपा का साफ लिखते हैं, तर्जनी मध्यमा बिना, तर्जनी और मध्यमा के बिना नासिका पुट को पकड़ें। तो यह जो संक्षेप में बहुत सी विधियों का किस काल में करें, प्राणायाम को करें तो किस काल में करें और कब करें, ये सब पूरा निरूपण उसमें है। किस समय में योग का प्रारंभ करें, यह वस्तुतः हम लोग 21 जून को यहाँ करते हैं। यह आरंभ काल नहीं है, यह हमारा मध्य काल है। हम लोग हेमंत और शिशिर वहाँ से शुरू करें तब जाके ठीक होगा। तो क्योंकि वह हमारे शास्त्रों में वही वर्णन है, ग्रीष्म में अगर प्रारंभ करेंगे तो आपको रोग हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए नहीं है, आप कर रहे हैं तो करते रहें ग्रीष्म इत्यादि ऋतु में। लेकिन दूसरे बाहरी विदेशियों को भी लेना है हमको, विश्व के सभी को लेना है। हम लोग तो योग हम लोगों के रग में बसा है, हम लोग हमेशा ही योग करते हैं। नहीं करें तो कर्म योग की स्थिति कैसे होगी। हाँ, सभी को उपदेश हम करते हैं कि आप कर्म करें, फल को छोड़ दें, यही तो कर्म योग है। ईश्वरार्पण कर दें फल बुद्धि, जो आपकी इच्छा है, आप जो फल चाहते हैं उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करें, यही कर्म योग है। नहीं तो कर्म करने में अप्रवृत्ति भी हो सकती है। कोई हो, हम फल की इच्छा कर लें कि हम गोल्ड मेडल पाएंगे, हमने तैयारी की नहीं पाए तो हम कहें कि अब कर्म ही नहीं करेंगे, पढ़ना ही छोड़ दें। तो ये ना हो, इसलिए इस तरह का कर्मयोग की जो विधान किया गया कि ईश्वरार्पण बुद्धि से आप शुभम अशुभम जो भी आप कर्म करें, पाप कर्म करें वह भी पुण्य कर्म करें, ऐसा भी ना हो जाए कि पाप कर्म तो सब पापे कर्म करने लगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन किया। कर्म को भी बताया, क्या गीता ने कहा कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। इसमें विद्वान विचार करते रहते हैं, कर्म क्या है, गहना कर्मणो गति। और तो यह कर्म हम लोग इसीलिए देखिए 18 गीता के 18वें अध्यायों में देखें तो आप हर एक अध्याय में आपको योग की प्राप्ति होती है, हर अध्याय में। अर्जुन को विषाद होता है, विषाद योग नाम पड़ा। विषाद अर्थात मोह हुआ उनको तमोगुण के कारण, तमोगुण के कारण वह मोह में पड़ते हैं, फिर विषाद होता है उनको। तो अगर वह सत्वगुण होते, संपन्न होते, तो उनको मोह होता ही नहीं। तो ये इतनी बड़ी गीता सुनने को ही नहीं मिलती हम लोगों को। वह सत्वगुण उनको उस समय नहीं हुआ, रजोगुण की स्थिति भी नहीं हुई, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हो जाते तब रजोगुणी हो जाते, प्रवृत्त नहीं हुए। वह लगे रहे अपने नाना प्रकार के प्रश्नों को लेकर के, जो प्रश्न भगवान से उन्होंने पूछे सभी को भगवान ने वहाँ उत्तर दिया। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत विशाल योग की परंपरा भारत में रही है। हम तो अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि हमारी 3 परंपराएं प्राप्त होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से। ब्रह्मा से अगर हम कहें तो एक मिलता है, सर बताएंगे कहाँ का वचन है, या केवल का स्मृति का है या कहाँ का है। कहते हैं हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, इस स्मृति का वचन है। तो हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्यगर्भ क्या है, सुवर्ण गर्भ। तो अगर उसको हम माने तो हिरण्यगर्भ से अर्थात ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ यह, तो वहाँ से योग उत्पन्न हुआ। दूसरा जो कृष्ण ने उपदेश दिया वह देखें तो विष्णु के साक्षात अवतार थे, वहाँ से उत्पन्न होता है। तीसरा जो हठ योग की विधा है, जो साक्षात शिव के मुख से निकली है, वह भी एक विधा है। तो 3 हमारे जो त्रिदेव हैं, वह तीनों देवों से यह परंपरा निश्चित होकर के आती है। तो बहुत व्यापक है योग का जो विस्तार है हमारा, बहुत ही व्यापक है। कोई भी ऐसा, चाहे वह शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे जटी हो, मुंडी हो, सिखी हो, जो कहते हैं वहाँ कोई भी हो, मुच्यते नात संशय, या 25 तत्वों को जान ले मुक्त हो जाए। उसी तरह यहाँ भी घटा लीजिए, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी शाखा को हो, शिव को मानने वाले तो सभी हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय विशेष से हो, किसी भी जाति विशेष से आते हों, शिव की आराधना सभी करते हैं। तो यह
इस तरह से आप देखें तो भारतवर्ष में पूरा योग कण कण में व्याप्त है और हम लोग इसको सोल्लास मनाते हैं और अच्छा है। हम अपने गुरुजनों को भी कुछ सुनेंगे, लेकिन बीच में हम जाने की अनुमति भी चाहेंगे कि हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसको भी हम ही को देखना है। हमारे हेड साहब आएंगे समय से, बाकी लोग भी समय से ही आएंगे, सभी हमसे बड़े हैं वहाँ, हम ही एक छोटे हैं, तो छोटे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भार दिया जाता है कि वह संभाला रहे। तो और हमको श्रुति जी ने जल्दी बुला करके यहाँ छोड़ दिया कि जल्दी से हम यहाँ छुट्टी मिल जाएगी आप लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। कार्यक्रम के बीच से, एक आयोजन के बीच से दूसरे आयोजन में आना और वहां पर शिरकत करना, वहां पर उद्बोधन देना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है और फिर उधर भी संभालना है। तो हम इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा कुछ आग्रह नहीं करेंगे। इच्छा थी कि आप कुछ और कहते, लेकिन कोई नहीं, फिर अवसर आएगा और फिर हम सुनेंगे आपको। तो योग में अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए आपने प्रायोगिक पक्ष को तो आप संभालते ही हैं, साथ ही साथ अपने सैद्धांतिक पक्ष को भी योग के, हालांकि योग दर्शन इतना विशद है कि कुछ शब्दों में इसे समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन यत्किंचित अपने बालकों के लिए तो आप कहते ही हैं, हमारे बालकों के लिए आपने जो कुछ भी उद्बोधन दिया अपने शब्दों में बांधकर आप रखने के लिए प्रवृत्त हुए, इस बात से हम अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत आभार है आचार्य। और पुनः पुनः हम कष्ट देते रहेंगे दर्शन एवं धर्म विभाग परिवार की ओर से आपको, जब भी अवसर होगा और आप स्वीकार करेंगे। और इसी क्रम में मंचासीन सुबह से हमारे साथ अन्य आचार्य तो अन्यत्र भी उनके कार्यक्रम थे और वहां पर भी उनकी संलग्नता थी, लेकिन सुबह हम 9 बजे से आए हुए हैं और डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे सामने बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं और हर कार्यक्रम को, हर उद्बोधन को बहुत ध्यान से वो सुन रहे हैं और सांख्य पर अपनी प्रयोग धर्मता के लिए ये बहुश्रुत हैं। सांख्य पर इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है, जैसा कि सुबह मैंने सुना था सांख्य तत्व मनोरमा सांख्य कारिका पर इन्होंने टीका लिखी है। तो और आए दिन लंबे समय से समय समय पर दर्शन एवं धर्म विभाग में इनके बोधन को सुनते रहेंगे। तो ये जब विशेष अवसर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और सांख्य और योग, जब सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ते न पंडितः, तो उस परंपरा का अनुगमन करते हुए हम इनके उद्बोधन से भला क्यों वंचित रह जाएं। तो आदरणीय वयोवृद्ध कहना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे शोध छात्र हैं, ये चिर शोध छात्र हैं, आज भी इनकी प्रयोगधर्मता चल रही है। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हमें सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा सांख्य के संदर्भ में। आग्रह है आपसे कि कृपया मंच संभालें डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समागत विद्वत मंडल और सभी विद्वान, मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ और मुझे आपने सांख्य योग पर कहने का अवसर दिया है। तो अब तक तो बहुत विद्वान सांख्य और योग के बारे में कह चुके और उन लोगों की अपनी पैठ थी और अपना ज्ञान था और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने सीखा था। और मैं अब भी सांख्य में एक रिसर्चर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने जो कुछ प्राप्त किया है अपने पूज्य गुरु प्रोफेसर कोठारी जी के आशीर्वाद से जो प्राप्त किया है और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो और जो अब तक परंपरागत भाषण हुए और जिन विद्वानों ने वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ, दूसरे की कही हुई बात मैं याद कर लिया हूँ, तो इसलिए हमारी बात जरा उन जो परंपरागत विद्वान है या जो ट्रेडिशनल परंपरा है उसके कुछ विपरीत जाएगी और इसके लिए आप क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारे को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चीज है कि सांख्य फिलॉसफी क्या है और सांख्य दर्शन क्या है और सांख्य शास्त्र क्या है। हम लोग पाश्चात्य विद्वान अभी सांख्य फिलॉसफी कहते चले गए,
तो ये हम 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सांख्य फिलॉसफी का मतलब होगा यहाँ दुख है। सांख्य फिलॉसफी का मतलब है, मैंने स्ट्रिक्टली सांख्य कारिका का फॉलो किया है और उसको मैं लकीर छोड़कर के कहीं भी बाहर नहीं गया हूँ। अब कब से कम 47 वर्ष तक मैंने सांख्य कारिका पर ही ध्यान लगाया हुआ है। तो सांख्य फिलॉसफी का मतलब है यहाँ दुख है, और सांख्य दर्शन का मतलब है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के सम्यक ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उस विशुद्ध ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस सत्य का साक्षात्कार परमर्श कपिल ने किया। तो कपिल सांख्य के दृष्टा है। तो सांख्य दर्शन का मतलब ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है और इस सत्य का साक्षात्कार परमर्श कपिल ने किया। तो सांख्य फिलॉसफी दूसरी चीज है और सांख्य दर्शन दूसरी चीज है। अब सांख्य शास्त्र क्या है? तो ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका लिखी है वही सांख्य शास्त्र है। तो ये चीज जो हमने प्राप्त किया था आपके सामने रखा। अब मैं योग के बारे में कह रहा हूं। इस सिस्टम का जो 6 दर्शन बने वह नकली बुद्धिज्म के रिएक्शन में बने हैं। नकली बुद्धिज्म, असली बुद्धिज्म नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध वैदिक ये परंपरा के प्रचंड समर्थक थे। उनके बाद उनके शिष्यों ने अपने मनमाना जो धर्म चला दिया, वो नकली बुद्धिज्म के रिएक्शन में जो खड़ दर्शन बने हैं उसी दर्शन का एक योग एक भाग है और यह शास्त्र नहीं है। आज हम लोग जो पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ते हैं वो पतंजलि उसके लेखक नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, ये कल्पना की गई है। इस शास्त्र का ये जो योग सूत्र लिखे गए हैं इनका संकलन हुआ है, इनका कोई लेखक नहीं है और विद्वत परिषद ने इसका संकलन किया है। इसकी प्रामाणिकता को जागृत करने के लिए ये महर्षि इनका पतंजलि का नाम दे दिया। तो ये दर्शन इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि योग से ज्ञान हो ही नहीं सकता है और ये शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कोई लेखक नहीं है। और योग की फिलॉसफी क्या है कि किसी भी कार्य के संपादन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए यही इसकी फिलॉसफी है। दर्शन इसका कोई नहीं है और इसका ये योग शास्त्र नहीं है। ये समय और परिस्थितियों के अनुरूप इसको उपस्थित किया गया। ये नकली बुद्धिज्म के रिएक्शन में बना हुआ चीज है और अब इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें मेरे ख्याल से कम 80% सूत्र निष्प्रयोजन है। तीसरी बात जो लोगों ने कहा कि सांख्य और योग एक है, सांख्य योग पृथक वाला। ऐसी बात नहीं है। सांख्य के बारे में अभी बताया, सांख्य का दृष्टा परमर्श कपिल है और सांख्य की फिलॉसफी यहाँ दुख है और सांख्य शास्त्र का रचयिता ईश्वर कृष्ण है। इसकी केवल फिलॉसफी है, दर्शन इसका है ही नहीं है और इसका कोई लेखक भी नहीं है। इसलिए सांख्य और योग कभी नहीं लिख सकते। और जो गीता में कहा गया है वहां वो कर्म संन्यास और कर्मयोग की बात है, वह सिस्टम नहीं है, वह कर्म संन्यास है और यह कर्म योग है। तो गीता में जो को सांख्य और योग एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सांख्य योग जो है कैवल्य प्रापक उपाय की सांख्य कैवल्य प्रापक उपाय की व्याख्या करता है और योग केवल यही बताता है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहे। शरीर स्वस्थ रहने के बाद और जो भी चीज योग में और पाठ जो 3-4 जोड़े गए हैं वो निष्प्रयोजन है, क्योंकि योग से कैवल्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा और हम 2-4 मिनट लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा खर दर्शन के बारे में हम कहेंगे कि खर दर्शन जो बना है
वह भगवान बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। भगवान बुद्ध के मर जाने के 200 वर्ष बाद जो उनके शिष्यों ने एक नकली बुद्धिज्म चलाया, उसी बुद्धिज्म के रिएक्शन में यह चला है और आज भी हम उसी को पढ़ रहे हैं। योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये न्याय सूत्र, ये सब शास्त्र नहीं है, ये हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस हमेशा लागू नहीं होती है। वो तब तक रही और इसको जितने हम हाइपोथेसिस को छोड़ करके शास्त्र के रूप में हमने जितना इसको अध्ययन किया उतना ही देश का विनाश हुआ। तो हर दर्शन को हाइपोथेसिस के रूप में हम समझें और यदि ये अब इस समय जो भारतीय दर्शन का रूप, अब दर्शन के बाद खड़ दर्शन के बाद सर्वदर्शन के बाद जो भारतीय दर्शन बन गया है, तो अब ये भारतीय दर्शन का अध्ययन हम लोग जिस रूप में कर रहे हैं, अगर वह इसी रूप में जारी रहा तो देश टुकड़े टुकड़े भागों में बट जाएगा और हिंदू संप्रदाय का विनाश हो जाएगा। तो विभाग अध्यक्ष और विद्वत समाज से मेरी यही निवेदन और प्रार्थना है कि भारतीय दर्शन पर पुनः परीक्षण किया जाए और हर चीजों को अलग अलग लगाया जाए। योग दर्शन योग की व्याख्या करता है, सांख्य केवल कैवल्य की व्याख्या करता है, न्याय तर्क शास्त्र है, वैशेषिक पदार्थ विज्ञान है और मीमांसा केवल यज्ञ की व्याख्या करती है और ब्रह्म सूत्र आज वेदांत है वो केवल ब्रह्म से संबंधित है। इसमें का इसमें, उसमें का उसमें कंपैरिजन नहीं करें। बारात में बहुत लोग जाते हैं, सब लोगों के काम बटे बटे होते हैं, लेकिन जो ही हम इन लोगों का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किए, हमारा देश का विनाश हुआ और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और देश जहन्नम में मिल गया। 1 लाख लोग काटे गए और 70,000 औरतें दासी के रूप में विदेश में भेजी गई। ये हमारे देश की दुर्दशा है और इसका मूल कारण ये खड़ दर्शन का शास्त्रीय रूप में पढ़ाया जाना है। और मेरा विद्वत समाज से यही अपील है कि प्रत्येक दर्शन का एक अलग अलग उद्देश्य है, उस उद्देश्य से यदि वह पढ़ा जाएगा तभी यह पता चलेगा कि उस दर्शन में कुछ सुरक्षा की गारंटी है। सांख्य के योग से कोई संबंध नहीं है, योग केवल शरीर को स्वस्थ होने की व्याख्या करता है और सांख्य कैवल्य की प्रापक उपाय की व्याख्या करता है। और योग दर्शन हो ही नहीं सकता, दर्शन के लिए दृष्टा का होना अनिवार्य है। न तो योग दर्शन होगा न तो वेदांत दर्शन होगा, दर्शन के लिए दृष्टा का होना जरूरी है। और जहां तक अभी विद्वानों ने श्रेष्ठ सांख्य और निश्चर सांख्य कहा, ये बिल्कुल गलत है। ये छोटा बच्चा भी नहीं सोच सकता कि श्रेष्ठ सांख्य माने क्या होता है और निश्चर सांख्य माने क्या होता है। जो किसी भी दर्शन में वो जो त्रिगुण से भिन्न है वह ईश्वर आ गया। तो शेषर सांख्य और निरक्षर सांख्य ये बात की कल्पना है। और जब दर्शन मनोरंजन का साधन बन गया, जीविकोपार्जन का साधन बन गया, तो लोगों ने अपने मनमाना कैसे हमारा पेट चला, देश जाए जहन्नम में, समाज जाए जहन्नम में। तो आज भी हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बिंदु पर नहीं सोचेंगे। तो दर्शन देश और समाज का प्राण होता है, उसको मनोरंजन का साधन बनाना, जीविकोपार्जन का साधन मानना देश और संप्रदाय के साथ विश्वासघात है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि भारतीय दर्शन का अध्ययन और अध्यापन जिस रूप में चल रहा है, यदि वह इसी रूप में जारी रहा तो देश टुकड़े टुकड़े भागों में विभक्त हो जाएगा और हिंदू संप्रदाय का नष्टनाबूद हो जाएगा। अब हमें ज्यादा नहीं कहना है, कहना था हमने 10 मिनट से ज्यादा समय ले लिया। बस थोड़ा ये हमारे जो ट्रेडिशनल बातें थी उसके खिलाफ हमने कहा और इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि जो हमने प्राप्त किया था वो दूसरे से प्राप्त किया था और हमारा गुरु ऋषि था और मैं उसके बाद तो आप भी ऋषि मानता हूँ। तो ये सब चीज है। और शंकराचार्य के बाद ज्यों कहते हो खड़ दर्शन की पढ़ाई को जारी रखना कि हमारे लिए विश्वासघात हुआ। 1761 तक लगातार हम लोग हारते गए। कहाँ गया इनका दर्शन, कहाँ गया योग, कहाँ गया सांख्य, कहाँ गया? जब दर्शन पेट भरने का साधन बन जाता है
तो देश के पतन का कारण बनता है। लाखों लाख लड़कियां आत्मदाह की, करोड़ों करोड़ों आदमी की निर्दोष की हत्या हुई, लेकिन हम आज लोग निरीश्वरवाद अनिश्वरवाद दुनिया भर का पढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष की आवश्यकता है जो समस्त हिंदू संप्रदाय को, जैसे शंकराचार्य ने के 712 में हमला हुआ था तो 70,000 लड़कियां दासी के रूप में पैदल दौड़ा करके जानवरों की तरह इराक भेजी गई सिंध से, और 1 लाख आदमी काटे गए। उन्होंने उस स्थिति और परिस्थिति को देखा। हम लोग केवल वेतन के पीछे दौड़ रहे हैं और देश कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं है। तो शंकराचार्य ने अपनी प्रतिभा से हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म सबको एक हिंदू का सबको डिफिनेशन दिया कि सभी एक मंच पर लाए, और उन्होंने 175 वर्ष तक, लगभग 1.25 वर्ष तक देश की राष्ट्रीयता को बरकरार रखा। देश पर कोई हमला नहीं हुआ। अब उसके बाद जितने दार्शनिक आए वो सब विद्वान रहे, उनको देश से, समाज से, हिंदू समाज से कुछ भी लेना देना नहीं रहा। बस हम ज्यादा कुछ बोल रहे होंगे तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिए, क्योंकि इसमें मेरा आप कुछ भी नहीं है। मैंने जो अपने गुरु से प्राप्त किया था आपके सामने उगल दिया। सांख्य भी सही है, योग भी सही है, न्याय भी सही है, सब सही है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से लिखा गया है, न्याय से, वैशेषिक से कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग केवल शरीर स्वस्थ रखने का उपाय है और पतंजलि योग सूत्र का रचयिता नहीं है। ये सब संकलन है। आप राधा कृष्ण को किताब को पढ़ें तो स्पष्ट लिखा है कि ये संकलन है केवल। तो मैं क्षमा चाहूंगा, और इसके लिए आप, क्योंकि हाँ, परंपरा के खिलाफ अगर हम बोल गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी। आपके कहना चाहिए कि क्रांतिकारी विचारों को सुन करके जैसे आंदोलित सा अनुभव होता है। आमतौर पर जब उद्बोधन आरंभ होते हैं तो धीरे धीरे हम अन्य मनस्क होते हैं और बहुत सारे विद्वान जो बैठे श्रोतागण होते हैं वो नींद के आगोश में आने लगते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आंखें खुलती चली जाती हैं। वाकई ये मौलिक विचार हैं और विद्वत समाज को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि षट दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं शास्त्रों के रूप में, क्या वाकई वो अप्रासंगिक हैं, जैसा कि डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी ने बताया है। अब इसी क्रम में मंच पर आसीन है परमादरणीय आचार्य देवव्रत चौबे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की महनीय परंपरा में दीक्षित, और न जाने कितनी ही पीढ़ियों को इन्होंने दीक्षित किया है, और राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर अध्येता हैं। 40 से अधिक शोध पत्रों के प्रणेता, अपने विचारों, प्रकृति और शिक्षा में एकात्मवादी आचार्य प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी को अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और जब तक सर यहाँ पर रहे हैं तो योग सिर्फ इन्होंने ही पढ़ाया है, तो आज कुछ हमें विशेष सुनने को मिलेगा इस आग्रह के साथ। इस संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा जी, हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, प्रोफेसर ओझा जी, प्रोफेसर विजय कुमार जी, एसपी पांडे जी, दुर्गेश चौधरी जी, डॉक्टर कल्पना यादव, नीतीश सिंह एवं इस गौरवशाली विभाग के छात्रों छात्राओं, मैं एक सरकारी विषय पर बोल रहा हूं जो सरकार ने निर्धारित किया है। योग दर्शन की क्या उपयोगिता है मानव के लिए, यानी मानवता के लिए योग दर्शन, मानवता के विकास में योग दर्शन की क्या भूमिका है, इसी विषय पर मैं संक्षेप में अपना विचार प्रस्तुत आप लोगों के सामने करूंगा। योग दर्शन के चिंतन के केंद्र में
केवल मनुष्य ही नहीं है, मानवता है। इसलिए संपूर्ण जगत के प्राणी, चाहे कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, योग दर्शन के चिंतन का विषय है। योग दर्शन में मानवता विकास के बहुत से बिंदु हैं। कुछ बिंदुओं को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो नए नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं उन बिंदुओं को। कोई नई बात मैं बताने जो है नहीं जा रहा हूं। योग दर्शन का जो पहला अंग है यम, वो 4 प्रकार का है, प्राय सभी आप लोग जानते होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा को परिभाषित करते हुए पतंजलि कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा न पहुंचाने का नाम अहिंसा। यह अहिंसा व्रत जब प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी अहिंसा व्रत के दृढ़ हो जाने पर साधक में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो हिंसा वृत्ति करने वाले लोग हैं वह भी अहिंसक हो जाते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, एक से एक विषैले जानवर भी अहिंसक सिद्ध के सामने आने पर जो है उनका विरोध समाप्त हो जाता है। जैसे व्यास जी लिख रहे हैं कि जैसे व्याघ्र और भेड़िया, सर्प और नेवला एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन किसी अहिंसक के सामने आ जाते हैं तो उनकी अहिंसा, उनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती है और वो अहिंसक बन जाते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि अहिंसा निष्ठ की इच्छा मात्र से अहिंसा की भावना सर्वत्र फैल जाती है। गांधी जी इसके उदाहरण है। महात्मा गांधी बहुत बड़े अहिंसावादी थे, आप तो जानते होंगे। जितना वो लिखते हैं कि पूर्ण रूप से मैं अहिंसक नहीं बन पाया, लेकिन अहिंसक थे। और वो स्वयं लिखते हैं कि अहिंसा का ये प्रभाव रहा कि मेरे संपर्क में मेरे विरोध, जो मेरे विरोधी थे, जो मेरे आलोचक थे आए, वे मेरे मित्र बन गए। आप भी जानते होंगे कि बहुत से क्रांतिकारी इनके संपर्क में आए और इनके संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप अहिंसक हो गए। और अहिंसा के और आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का ही बोलबाला रहा, ऐसा मानकर मैं चलता हूं। कि क्यों? इसलिए कि एक अहिंसक ने इस आंदोलन को जो है चलाया था। यह अहिंसा का प्रभाव है। दूसरी बात, आए हम सत्य। मन एवं वचन की एक रूपता सत्य है। यानी जो वस्तु जिस प्रकार देखी गई है, अनुमान की गई है, आप पुरुषों के द्वारा कही गई है, उसको उसी रूप में मन में रखना तथा दूसरों के सामने उसी रूप में प्रस्तुत करना, यही सत्य है। सत्य व्रत के प्रतिष्ठित हो जाने पर साधक के मुख से जो भी वचन निकलता है वह त्रिकालाबाधित है। यदि साधक किसी से कहता है कि तुम कृतार्थ हो जाओ, तो वह तत्काल कृतार्थ हो जाता है। यदि साधक किसी से कहता है कि तुम रोग से मुक्त हो जाओ, तो वह तत्काल रोग से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाता है। यानी सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति का वाक्य अमोघ होता है। तो ये देखें, यदि अहिंसा और सत्य का पालन व्यक्ति जीवन में करने लगे तो संसार में कहीं भी अशांति नहीं दिखेगी, हर जगह शांति ही शांति दिखेगी।
और आज इसकी बहुत ही जरूरत है। आज संसार की इसी की आवश्यकता है। हिंसा से हिंसा को नहीं दबाया जा सकता। यदि हिंसा को दबाना है तो अहिंसा से ही दबाया जा सकता है। अहिंसा का साम्राज्य पतंजलि भी स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं, व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। दुनिया में किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो, दुनिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। इसलिए ये दुनिया में शांति स्थापित करनी है, दुनिया में सामंजस्य स्थापित करना है, दुनिया में समरसता लानी है, तो हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपना करके चलना होगा। और यह स्वतः सिद्ध मार्ग है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि पतंजलि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। जैसे गणित में हम 2 और 2 4 करते हैं, 4 ही आता है, उसी तरह उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलेंगे तो वैसा ही होगा जैसा वो बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा अस्तेय है, पर द्रव्य का अपहरण न करना तथा उसकी इच्छा तक न करने का नाम अस्तेय है। अब यहां देखिए कि यदि अस्तेय व्रत सिद्ध हो जाता है तो उसके सिद्ध हो जाने पर साधक के सामने दुनिया की जितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं सब आकर के उपस्थित हो जाती हैं। ये भाष्यकार लिख रहे हैं, दानी व्यक्ति अच्छी से अच्छी वस्तुओं को आकर के उस साधक को देखा है जो अस्तेय व्रत का साधक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने राग को जीत लिया है वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी है। इसका तात्पर्य ही हुआ कि यदि हमारे पास कोई तृष्णा नहीं है, लालच नहीं है, राग नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? वो तो सबका स्वामी है। ये पतंजलि चाहते हैं कि अस्तेय व्रत का भी पालन लोग करें, जिससे कि समाज में एक समरसता पैदा हो, समाज में किसी भी प्रकार का दुराचार न हो। चौथा है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के विषयों से समस्त इंद्रियों को संयत कर उपस्थ संयम करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य लाभ प्राप्त होता है और ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति आ जाती है। इस सूत्र की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी रूपों में कर रहे हैं। विवेकानंद लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना और कोई ऐसी उपाय नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति दे सके। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा ही पैदा की जा सकती है। और ये भी वो लिख रहे हैं कि समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण ब्रह्मचर्यवान थे, इसलिए उनके अंदर अपार शक्ति विद्यमान थी। विवेकानंद जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, यद्यप आध्यात्मिक नेताओं का वो नाम नहीं लेते, लेकिन ये लिखते हैं कि आध्यात्मिक नेतागण सभी ब्रह्मचर्यवान थे। मैं सोचता हूं कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। बहुत लोग हो सकते हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक हैं, महर्षि अरविंद हैं, महामना मालवीय हैं, महात्मा गांधी हैं। इस तरह के तमाम लोग इसके अंतर्गत जो है आ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य में यह शक्ति है। और अपरिग्रह, ये 5वां लास्ट है, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक मात्रा में द्रव्यों के संग्रह करने की प्रवृत्ति को रोकना अपरिग्रह है। कुछ नए व्याख्याकार इस सूत्र की व्याख्या इन रूपों में किए हैं कि आवश्यकता से अधिक धन को लोकहित के लिए दे देना अपरिग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये देखिए कि जब अपरिग्रह की सिद्धि हो जाती है तो साधक के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने पूर्व जन्म की बातों को भी उसे याद आने लगता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था।
मेरा यह शरीर क्यों पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, भविष्य में क्या होगा, यह अपरिग्रह की विशेषता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यदि 5 इन मानवीय तत्वों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो यह वसुधा जो है क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। इसके अतिरिक्त 2-3 और चीजों को ध्यान आकृष्ट करने के बाद समाप्त करूंगा। ये मैत्री, करुणा और मुदिता की भावना पर भी पतंजलि ने बहुत ही प्रकाश डाला है। तो मैत्री भावना को हम ले, मैत्री भावना एक प्रकार का ध्यान है जिसे हम मैत्री ध्यान कहते हैं। प्रारंभ में मैत्री भावना के दृढ़ हो जाने पर बाद में मैत्री भावना सहज रूप में प्रवाहित होने लगती है। यदि मैत्री भावना दृढ़ हो गई तो यह सहज रूप में जो है प्रवाहित होने लगेगी। और वैदिक ऋषियों से लेकर के आधुनिक संत महात्माओं तक ने मैत्री भावना को महत्व दिया है। वैदिक ऋषि की प्रार्थना है, बैठे हुए हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वभूतानि समीक्षे, मैं सभी प्राणियों को मित्र की आंखों से देखूं। यह प्रार्थना है वैदिक ऋषि की। और पुराण की यह प्रार्थना तो प्राय आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सभी सुखी हो, ये प्रार्थना है। यह मैत्री भावना ही है। यानी भारत में मैत्री भावना की अवधारणा बहुत पहले से रही है, लेकिन महर्षि पतंजलि और महात्मा बुद्ध ने उसे योग साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन लोगों ने योग साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। बौद्ध साहित्य में पाली में मैत्री सूत्र को मेता सूत्र में इसका बहुत ही उल्लेख किया गया है। और महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा ये 4 भावनाएं बतलाई हैं, लेकिन 3 भावनाओं को उन्होंने उदात्त माना है। महर्षि पतंजलि मैत्री भावना, करुणा भावना और मुदिता भावना, ये 3 भावनाओं को चित्त की उदात्त भावनाएं मानते हैं। ये चित्त की उदात्त भावनाएं हैं। जो साधक इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन मधुरता से परिपूर्ण हो जाता है। भाष्यकार व्यास कहते हैं कि सुखी रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। होता क्या है, समान रूप से हम लोग देखते हैं कि माने प्राय यह देखा जाता है कि जिनके सुख में हमारा स्वार्थ निहित नहीं है, हमारा स्वार्थ नहीं रहता, तो उनके सुख को देख करके हमारे चित्त में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। ईर्ष्या की भावना पैदा होती है उनके सुख को देख करके। इसको दूर करना है। ये कैसे दूर होगा? तो कह रहे हैं कि जिनके सुख से ईर्ष्या द्वेष होता है, उनके सुखी होने पर मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी हूं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि मैं मित्र के सुखी जैसा सुखी हूं। इस प्रकार की भावना करने से हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना जो है समाप्त हो जाएगी। और योगी सुखी जीवों के प्रति मैत्री की भावना करके मैत्री भावना को सिद्ध कर लेता है। और मैत्री भावना के सिद्ध हो जाने पर उसके समक्ष देवता, मनुज, तनुज कोई भी आता है तो उसका मित्र बन जाता है। मैत्री भावना के सिद्ध हो जाने पर उसके सामने उसका शत्रु भी आता है तो वह उसका जो है मित्र बन जाता है। और उसके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि उसके देखते ही शत्रु का शत्रुत्व समाप्त हो जाता है और वह तत्काल जो है उसका मित्र बन जाता है। तो मैत्री भावना को स्थापित करना इस संसार में बहुत ही जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने मैत्री का अभ्यास बताते हुए कहा कि कैसे मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं
कि हम अपने पड़ोसी के प्रति भावना करें कि उसका भला हो, उसके खेत में खूब अन्न हो, उसकी गायें अधिक से अधिक दूध दें, उसके परिवार में कोई कष्ट न पड़े आदि आदि। कहते हैं किस तरह की भावना जो है मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए इस तरह की भावना जो है अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैत्री भावना में साधक जिस भावना का अभ्यास करता है वह प्रेम भावना है, वह प्रेम भावना है। बौद्ध परंपरा में प्रेम के लिए मैत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम के भिन्न भिन्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे माता पुत्र का प्रेम या पिता पुत्री का प्रेम एक तरह का दिखता है। इसी प्रकार और पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम थोड़ा दूसरे तरह का दिखता है। मित्र मित्र का प्रेम, समाज का प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम अलग प्रकार का दिखता है। ईश्वर के प्रति प्रेम कुछ अलग प्रकार का दिखता है। यानी इसमें भिन्नता इस कारण है कि प्रत्येक में प्रेम के साथ कुछ अलग तत्व जुड़ जाता है। कमलाकर जी हम लोगों को पढ़ाते थे तो एक उदाहरण देते थे, वो बड़ा ही रोचक उदाहरण है, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अपना नहीं है, मेरे गुरु का ये जो है उदाहरण है। वो कहते थे कि अनेकों प्रकार की मिठाइयां होती हैं जो सभी मीठी होती हैं, लेकिन प्रत्येक की मिठास का स्वाद थोड़ा अलग अलग होता है। इन सभी मिठाइयों को मीठा बनाने वाला एक ही तत्व है और वह है चीनी। ठीक है, वह है चीनी। चीनी के बिना मिठाई नहीं बनेगी। चीनी के साथ कुछ अन्य तत्व मिलते हैं जिससे मिठाइयों में भिन्नता आ जाती है। जैसे चीनी के साथ छेना मिलने से रसगुल्ला बन जाता है, उसके खोआ मिलने से बर्फी बन जाती है, मैदा था घी मिलने से अन्य मिठाई बन जाती है। तो इस सब में मिठास का स्वाद अलग है। इस सब में मिठास का स्वाद अलग होता है कि इन सब में मिठास चीनी के कारण ही है। सब में मिठास चीनी के कारण ही होता है और स्वाद में भिन्नता चीनी के कारण नहीं होती। स्वाद में भिन्नता क्यों होती है कि उसके साथ कुछ अन्य तत्व मिल जाते हैं। उसी प्रकार मैत्री भाव के बिना कोई भी तत्व प्रेम, मैत्री भाव न हो तो कोई भी प्रेम संबंध मीठा नहीं हो सकता। प्रेम संबंध मीठा होने का कारण मैत्री भाव है, लेकिन मैत्री भाव के साथ कुछ अन्य तत्व मिल जाते हैं तो थोड़ा उसकी मिठास अलग अलग हो जाती है, प्रेम अलग अलग हो जाता है। जैसे पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव का प्रेम होता है, गुरु माता पिता के प्रति श्रद्धा का प्रेम होता है, पति पत्नी के प्रति काम का प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति अर्पण का प्रेम होता है। तो प्रेम के प्रकार अलग अलग हो गए, लेकिन ये प्रेम जो है मैत्री भाव के कारण ही है। यानी किसी भी प्रेम संबंध का कारक मैत्री भाव ही होता है और मैत्री भाव के बिना प्रेम निरस होता है, यांत्रिक होता है। यह मैत्री भावना के संदर्भ में जो है यह बताया गया है। एक बात और है, जो पता नहीं योग दर्शन से मिलेगा कि नहीं, ये जोड़ा जाए कि मैत्री भावना जिस सत्य पर आधारित है वह यह है कि सभी अपने हैं, पराया कोई नहीं है। पराया कोई नहीं है। यानी मैत्री भावना वाला व्यक्ति लोगों से उद्विग्न नहीं होता है, न लोग उससे उद्विग्न होते हैं। और
जिस भी कार्यों से संसार का कल्याण होता है वे कार्य मैत्री भावना से ही युक्त होते हैं। बिना मैत्री भावना के मंगल नहीं हो सकता, कल्याण जो है नहीं हो सकता है। और मैं बहुत संक्षेप में करुणा और मुदिता के बारे में बताता हूं। यह करुणा की जो भावना है, ठीक है, साधक को दुखियों को देख करके साधक के अंदर एक करुणा की भावना पैदा होती है और उसके मन में यह विचार आता है कि इस दुखिता के कष्ट को मुझे दूर करना चाहिए क्योंकि इसे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। लेकिन यह भावना कब आएगी? जब करुणा बल की सिद्धि हो जाएगी। करुणा की भावना करते करते करुणा बल की जब सिद्धि हो जाएगी तब उसके अंदर जो है यह भावना जो है आएगी। इसलिए करुणा भावना के परिणाम स्वरूप योगी में करुणा बल प्राप्त होता है और करुणा बहुत ही आवश्यक है। इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, इसके साक्षात मूर्ति थे महामना मालवीय। आप लोग जानते होंगे क्या है भाई, है कि मैं दुखी प्राणियों, बार बार मैं जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूंगा। न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गान पुनर्भयम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाश्रम, कि बार बार जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूं, यह करुणा की भावना है। और योग शास्त्र से ही ये सभी जितने बड़े बड़े नेता हुए उस समय के, वे सभी के सभी नेता योग शास्त्र से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उनके अंदर यह सब भावना आई है। और मुदिता, लास्ट मुदिता है, सत्कर्म में प्रवृत्त पुरुष को देख करके उसके प्रति मुदिता की भावना करनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए किसी सत्कर्मी को देख करके कि यह धार्मिक कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, यह अच्छे कार्यों में जा रहा है, इसको देख करके हमारे अंदर जो है प्रसन्नता होनी चाहिए। और इस प्रसन्नता को अपने जीवन में उतारने के लिए इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना का उपदेश दे करके विश्व बंधुत्व की ओर हम सबको ले जाने का जो है प्रयत्न किया है कि यह वसुधा जो है, पूरी वसुधा जो है अपनी है, वसुधा में कोई दूसरा जो है कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन में इन तत्वों को उतार करके हम सबका हर दृष्टि से मंगल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम लोग दुनिया का मंगल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। किसी विषय की प्रासंगिकता इस बात से निर्धारित होती है कि वर्तमान में उसका कितना महत्व है। स्वाभाविक सी बात है कि अष्टांग योग के अंतर्गत यदि यम और नियम का भी समुचित रूप से पालन किया जाए तो आज चौतरफा विश्व में जो हम अराजकता और युद्ध की स्थिति देखते हैं, यत्किंचित उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। बहुत ही सरल और सहज ग्राह्य शब्दों में आपने बालकों को उद्बोधित किया। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में दर्शन, मैंने पहले भी कहा कि दर्शन एवं धर्म विभाग में सांख्य दर्शन का यदि कोई पर्याय रहा है तो वो रहे हैं हमारे आचार्य कृपाशंकर ओझा सर। और युक्ति दीपिका, सांख्य सूत्र, सांख्य कारिका, न जाने कितने ही सांख्य संबंधी ग्रंथों का शिक्षण और शोध संबंधी कार्य अनवरत इनके द्वारा किया जाता रहा है। न जाने कितनी बार इसका आलोड़न किया गया और शोध कार्य करने के दौरान इनके सानिध्य में सांख्य के कुछ सूत्रों को समझने जानने का अवसर मुझे भी मिला। उन क्षणों को पुनः स्मरण करते हुए बहुत एक लंबे अंतराल के बाद विभाग में इनका आगमन हुआ है और हम इस भाव से अभिभूत हैं कि इनके आप सभी के आशीर्वाद से हम सभी कृतकृत्य हो रहे हैं। तो मैं इस श्रृंखला के अगले क्रम में आचार्य कृपाशंकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। नहीं नहीं ठीक, बैठने में और तकलीफ होगी।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अध्यक्ष आचार्य कृष्णकांत शर्मा जी, विभागाध्यक्ष आनंद मिश्रा जी, और हमारे सभी चौबे जी, एसपी पांडे जी और विजय कुमार जी, सभी मित्र, और साथ में श्रुति मिश्रा को भी मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि इन्होंने हमको यहाँ आने के लिए बाध्य ही किया। कभी हम इनकार भी कर सकते थे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन इन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए आइए, बैठे ही रहिए। लेकिन अभी तक मित्रों, सभी अपने श्रोता, जितने विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थियों, असल में आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, बैठे में न संजय। हाँ, आज का जो ये विषय है, आने पर हमको ये था कि सांख्य द फिलॉसफी ऑफ योग। तो इसमें इन्होंने ये रखा है मन में ऐसा भाव कि सांख्य है क्या, तो फिलॉसफी ऑफ योग है। योग में जो दार्शनिक तत्व हैं, जो मेटाफिजिकल चीजें हैं, उस पर कैसे योग दर्शन सांख्य की मेटाफिजिक्स पर अपनी प्रैक्टिकल टेक्निक को डेवलप करता है, इस पर विचार करने की बात है। और यहाँ पर विद्वानों ने ये भी कहा कि हम लोगों के सबके मन में रहता है कि सांख्य और योग दोनों वास्तव में अलग अलग हैं नहीं। गीता में जो कहा गया भगवान कृष्ण ने कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंति न पंडिता, तो उसके आगे भी एक श्लोक है, उसमें साफ साफ वहां पर उन्होंने भी कहा है कि यत स्थानम प्राप्यते सांख्यै तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति। वास्तव में जिस परम गति को, जो स्वरूपावस्था या कैवल्य की अवस्था को, अपने आत्म साक्षात्कार स्वबोध को प्राप्त करते हैं हम सांख्य के द्वारा, उसी को हम योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, इस दृष्टि से, क्योंकि हमारे लक्ष्य तक दोनों ही पहुंचाते हैं। हम दोनों द्विधा निष्ठा, कृष्ण जी कि हमने दो प्रकार की निष्ठाएं वहां बताई है। एक है ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो है, चाहे वो ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों ही निष्ठाएं हमें अपने लक्ष्य, और लक्ष्य क्या है, जैसे सभी भारतीय दार्शनिकों का, सभी भारतीय सिस्टम का ये लक्ष्य है, बिना किसी उसके कि कैवल्य की प्राप्ति, सम्मम बोनम ऑफ लाइफ, जीवन का परम निःश्रेयस क्या है, उसी की प्राप्ति, चाहे उसको मोक्ष कहिए, चाहे कैवल्य कहिए, चाहे अपवर्ग कहिए, कुछ भी करिए कहिए, उसी तरह से योग का भी है। सांख्य दर्शन की तो शुरुआत ही होती है आध्यात्मिक जिज्ञासा से, उसी तरह से योग में भी आप देखें। अभी हम बस थोड़ा 2-3 बिंदुओं पर ये सांख्य और योग की बात करें। सांख्य कारिका की शुरुआत ही दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, दुख शब्द से ही सांख्य कारिका की शुरुआत ही वो आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कर रहे हैं। और चाहे आप बौद्ध दर्शन में पढ़ें, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, सर्वम दुखम, योग सूत्र का दूसरे अध्याय का 15वां सूत्र है, जहां पतंजलि ने लिखा है साफ साफ, परिणाम ताप दुख संस्कार ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। विवेकिना माने योगिना, सर्वम दुखम एव, सब कुछ तो दुख ही दुख है। तो जो आध्यात्मिक यात्रा सांख्य ने शुरू किया था, वही तो योग भी ले चल रहा है। ये बात अलग है कि सांख्य के सिद्धांत में जो ये कहा
भगवान ईश्वर कृष्ण साफ साफ कहते हैं कारिका 67 में कि ये कैवल्य की प्राप्ति होती कैसे है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो सम्यक ज्ञान से होती है। वहां सम्यक ज्ञान कारिका है, जो लोग नहीं बस कारिका पूरा नहीं थोड़ा सा बता रहे हैं। अच्छा, सम्यक ज्ञानाधिगमात धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार बसात चक्र भ्रम धृति व शरीरा, चक्र भ्रमवत धृत शरीरा, चक्र भ्रम, इसे कुंभकार की चाक की तरह ये शरीर भी हमारा रहता हो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कैसे जीवन मुक्ति मिलती कैसे है, तो कहा कि सम्यक ज्ञान अधिगमात, तो सम्यक ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी पुरुष प्रकृति के विवेक से, वही विवेक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और एक बहुत प्रचलित पंचशिखाचार्य का आचार्य जी हैं, वो बताएंगे, उन्हीं का है किसी दूसरे का है, जिसमें यह है कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रम, बहुत अच्छा रिमार्केबल इस कथन है उनका पंचशिखाचार्य का संभवतः, तो या नहीं है उसका, उसमें कुछ ठीक नहीं है पता। ये है कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे रता जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशया, इसमें एकदम संशय नहीं है कि अगर तत्व ज्ञान हो गया तो किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, किसी भी वेशभूषा में हो, कैसे भी हो, उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और अभी तक जो वक्तव्य हुए हैं योग के व्यवहारिक पक्ष पर हुए हैं, हम थोड़ा सा उसके आध्यात्मिक पक्ष पर इस तरह से हम बताना चाहते हैं कि जो योग का लक्ष्य भी यही है कि किस प्रकार से योग शास्त्र की शुरुआत ही अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है। पांडे जी ने कहा कि पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता नहीं है, योग सूत्र के रचयिता नहीं है, बल्कि उसका संकलन करता है। तो लोग व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि जो अनुशासन पद आया है, इससे ध्वनित होता है कि जो पहले से शिष्ट है, पहले से उपदिष्ट है, उसी का उपदेश दिया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसा मानने में कोई हमको लगता है कि प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। पतंजलि को चाहे आप संकलन करता मानिए, चाहे आप उनका रचयिता मानिए, ऐसे महान ऋषि का जिसका हमने प्रणाम किया, सभी आचार्य उनका प्रणाम करके ही योग की शुरुआत के विषय में कुछ बोलना शुरू करते हैं। अगर वो बात सही है कि योग सूत्र लिख करके उन्होंने योगे न चित्त से, चित्त के मल को दूर किया, और पदेन वाचाम, महाभाष्य लिख करके उन्होंने वाणी के मल को दूर किया, और मलम शरीर से च वैद्यकेन, और शरीर के अशुद्धियों को दूर करने के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्र लिखा। यदि वास्तव में वही आचार्य ने इन तीनों शास्त्रों की रचना किया है, इसमें विवाद है, तो वास्तव में यदि किया है ऐसा अगर होता तो वास्तव में उनसे बड़ा ऋषि कोई इस धरती पे ना होता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए है क्या, शरीर है, मन है और वाणी है। आगे देखिए, वाणी, शरीर और मन तीनों को शुद्ध करने के लिए तीन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषि हुए। तो महर्षि पतंजलि जो कुछ कह रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एक आध्यात्मिक पक्ष, केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग दर्शन का उपदेश हम समझते हैं कि नहीं दिया गया है। यद्यपि व्याधि को योग साधना में एक अंतराय माना गया है। योग सूत्र 1:28 में, पहले अध्याय के 28वें सूत्र में, व्याधि स्नात प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आदि 9 अंतराय, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ योगा बताए गए हैं, जिसमें व्याधि सबसे पहला है। तो जब तक व्याधि, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, वास्तव में योग के अंगों का अनुष्ठान हम नहीं कर सकते हैं। ना तो हम आसन करने के योग्य होंगे और न प्राणायाम, माने कोई भी के लिए शरीर जरूरी है, उसका स्वस्थ होना जरूरी है। और शरीर के स्वस्थ होने के लिए योग दर्शन में जो अष्टांग योग का उपदेश उन्होंने दिया है, उसमें
आसन की बड़ी महिमा है। आजकल आप लोग देख रहे हैं योग का अर्थ ही लोग समझते हैं कि आसन, तो ऐसा समझना तो ठीक नहीं है, क्योंकि योग का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एम है और वो है कैवल्य की प्राप्ति। और इसीलिए दूसरा सूत्र में जब उन्होंने योग को डिफाइन किया, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध योग है, क्योंकि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा होने पर जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तभी दृष्टा स्वरूप पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आप सभी को पता है कि ऐसा कभी कभी प्रश्न लोग करते हैं कि क्या चित्त वृत्तियों के निवृत्त होने के पहले पुरुष या दृष्टा जो है अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं था? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अपने स्वरूप से परिचित हो जाए। पुरुष तब भी दृष्टा स्वरूप था, शुद्ध निर्मल चेतन स्वरूप था, अब भी है, केवल वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। एक ऐसा समय था आया जब चित्त वृत्तियों के सारूप्य हुआ, उनका प्रॉक्सिमिटी, उनका संबंध दृष्टा से हुआ। तो जैसे आप जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे के लोग समझाते हैं कि जैसे आप स्फटिक मणि जानते हैं ना, स्फटिक मणि के सामने स्वच्छ है, निर्मल है, जब जपा कुसुम रख दिया जाता है तो स्फटिक मणि लाल वर्ण की दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या वस्तुतः वो लाल वर्ण की हो गई? यदि आप चाहते हैं कि स्फटिक मणि अपने शुद्ध निर्मल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो क्या करना होगा? चित्त वृत्तियों का अपसरण होगा, चित्त वृत्तियों को, वो जपा कुसुम को हटाना होगा। जब जपा कुसुम वहां से हट जाएगा तो पुनः स्फटिक मणि अपने स्वच्छ स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यही बात है, दृष्टा स्वरूप जो पुरुष है जब तक चित्त वृत्तियों के सन्निधि में है तब तक चित्त वृत्तियों का सारा सुख दुख आदि जितनी चीजें हैं वो उसमें उपरक्त होती हैं। उनका एक्चुअली वो उसमें होती नहीं है, लेकिन वो उसमें एस्क्राइब्ड होती हैं, औपचारिक रूप से उनका उपचार होता है। और जब ये चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी तब पतंजलि का यही लक्ष्य है, यही योग सूत्र का लक्ष्य है कि तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तभी दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकता है। हम आपको ये बता रहे हैं, ये योग दर्शन का सभी दर्शनों की तरह एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो है कैवल्य की प्राप्ति। आप यहाँ देखिए, फिर योग सूत्र का अंतिम सूत्र पढ़िए, वहां भी कैवल्य को डिफाइन किया गया है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्य, स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। ये दो वैकल्पिक डिफिनीशन दी गई, उसमें ये जैसे तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम है, वहां भी है स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। चित्त शक्ति माने पुरुष का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। ये तब होता है जब कैवल्य का साधक जो विवेक ख्याति है, जिसको यहाँ विवेक ख्याति, वहां पर सम्यक ज्ञान कहा गया, विवेक यहाँ पर विवेक ख्याति उसका नाम दिया गया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सांख्य में तो कह दिया गया कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये प्रैक्टिकल साइड है योग, योग में अब यही बताया जा रहा है कि उस सम्यक ज्ञान या विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे हो। तो उसके लिए पतंजलि ने, चौबे जी ने बताया, उसमें अष्टांग योग का उपदेश दिया। क्यों अष्टांग योग की साधना हम करें, अष्टांग योग की प्रैक्टिस हम क्यों करें, इसका जवाब स्वयं पतंजलि देते हैं। सूत्र 28 में देखें, वहां साफ साफ उन्होंने लिखा कि हम योग की प्रैक्टिस क्यों करें, उसका क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए हमें। तो एक बहुत अच्छा ये सूत्र है, यही शुरू होता है, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तोड़ तोड़ करके बोल रहे हैं, आचार्य क्षमा करेंगे समझने के लिए। तो ये हुआ कि योगांग अनुष्ठानात्, योग के जितने भी अंग हैं, जिसको आप लोग अष्टांग योग कहते हैं, अभी वो क्रिया योग बता रहे थे, फिर अभ्यास वैराग्य, कई हैं चित्तवृत्ति निरोध के साधन, लेकिन जो अष्टांग योग में है उसका यही है कि हमें अष्टांग योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए,
क्योंकि अष्टांग योग के अंगों की प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से अशुद्ध क्षय, हमारे चित्त में जो अशुद्धियां हैं, अविद्या आदि क्लेश हैं, कर्म वासनाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष आदि जो हमारे चित्त के मल कहे जाते हैं, विकार कहे जाते हैं, उनका क्षय होता है, क्षीण होते हैं। उनको क्षीण करने का एक मात्र साधन है क्रिया योग। तो हमारे जो चित्त किया जाता है, क्रिया योग भी अष्टांग योग के भीतर ही है। और फिर क्या होगा, जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तभी उसमें कहते हैं ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिंबन की शक्ति नहीं होती है, उसी तरह से मलिन चित्त में ज्ञान के उदय की क्षमता नहीं होगी। तो इसलिए योग का अभ्यास करना है कि हमारा चित्त निर्मल हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ताकि उसमें ज्ञान का प्रकाश उदित हो। तो योग के अंगों का अभ्यास करते रहने से निरंतर निष्ठा पूर्वक, लेकिन अभ्यास का अर्थ आप लोग इतना जरूर समझिएगा कि अभ्यास ऐसे वैसे नहीं होता है। अभ्यास के लिए पतंजलि ने शुरू में ही बता दिया है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, एक दो नहीं कि 2-3 दिन हम प्रैक्टिस किए फिर छोड़ दिए, निरंतर कर रहे, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि असत्कार से भी तो सत्कारा से भी तो, सत्कार माने श्रद्धा पूर्वक जिस डिसिप्लिन को आप फॉलो कर रहे हैं, उस डिसिप्लिन में आपकी श्रद्धा होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिना दृढ़ संकल्प के अभ्यास फलीभूत नहीं होता और न हो ही सकता है। तो दृढ़ संकल्प पूर्वक निरंतर योग के अंगों का अनुष्ठान करते रहने से हमारे चित्त के अशुद्धियां क्षीण हो जाती हैं और तब उसमें ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। और वो ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे हमारा योग अंगों का प्रैक्टिस मजबूत होती जाती है, दृढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही वो ज्ञान दीप्ति, लाइट ऑफ विजडम जो है, वो भी बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती जाती है? अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति का उदय ना हो। तो विवेक ख्याति के उदय पर्यंत वो ज्ञान की का प्रकाश हमारा बढ़ता जाएगा। और तब जब ज्ञान विवेक ख्याति आ गई तो सूत्रकार ने स्वयं कहा है कि अब मिथ्या ज्ञान, वो कहते हैं कि विवेक ख्याति अभिप्लवा हानो पाया। हान माने कैवल्य, कैवल्य का उपाय क्या है? विवेक ख्याति है। जब साफ ही पहले ही सूत्र में बता दिया उन्होंने कि विवेक ख्याति से ही अभिप्लवा विवेक ख्याति हानो पाया। हान मीन्स कैवल्य, कैवल्य का उपाय विवेक ख्याति है और उस विवेक ख्याति की प्राप्ति हमको योग के अंगों के अनुष्ठान से ही हो सकती है। इसीलिए योग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। उस योग की प्रैक्टिस में सभी आचार्य ये मानते हैं कि जो 8 अंग हैं उनका भी एक अपना साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि यम नियम आदि जो 8 हैं उसमें आप यम नियम का पालन न करके बाकी सीधे आसन करना शुरू कर दीजिए। सबका अपना महत्व है। यम नियम को मॉरल डिसिप्लिन कही जाती है, उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि योग का जो लक्ष्य है उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, उसके लिए यम नियम हमको मॉरली साउंड बनाता है। यम का पालन करने से, नियम का पालन करने से, यम क्या बहुत बढ़िया चर्चा चौबे जी ने किया 5 यमों की। अब 5 नियम जो है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यहाँ भी हैं। ये पांचों जो बहुत जरूरी है। देखिए शौच, बस यही 5 में बता के, बाकी सब तो ये योग दर्शन सब लोग पढ़े, जो यहाँ पढ़ाते हैं योग दर्शन, ये सब चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं बस। हाँ तो हाँ, अच्छा इसको बता ले तो फिर हाँ विवेक ख्याति होता है। तो ये नियम का देख लो, नियम में जो शौच है
वो सब मानते हैं कि ये एक एक्सटर्नल प्योरिटी होती है कि इंटरनल। तो एक्सटर्नल प्योरिटी तो चलिए ठीक है, अपना खुद शरीर को अच्छे से साफ रखना चाहिए। प्राचीन काल में कैसे उसकी व्यवस्था थी अब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरनल आभ्यंतरिक शौच है वो मानसिक है। मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, कैसे हम चित्त को अशुद्धियों को दूर करें, वो भी एक ये है, अनुष्ठान है। और उसको योग के सभी अंग अनुष्ठान है, योग के सभी अंग अनुष्ठान ही है, मैं अभ्यास की। और फिर दूसरा है संतोष। इनका ये भी बताया कि अशुद्धि क्षय, ये जो शुद्धि होती है, शौच होता है, उससे दो चीज प्राप्त होती है। एक तो सबसे तो यह है कि स्वांग जुगुप्सा, मतलब संसार में प्रसिद्ध है कि किसी को अपने शरीर का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को तो शरीर में ही जो वो बोध होता है, वो अपने ही अंगों से जुगुप्सा उस योगी को होने लगती है। और पर ही असंसर्ग, तो पर दूसरे के शरीर का संसर्ग छूट जाता है। और दूसरा सिद्धि होती है ये काय इंद्रिय, ये जो है कि उसमें शौच है, इंद्रिय निग्रह है और सत्व संशुद्धि है। ये सब चीजें मन के भीतर आ जाती हैं, शुद्ध हो जाता है माइंड। और स्वाध्याय का अर्थ होता है, स्वाध्याय का बहुत टेक्निकल टर्म है। स्वाध्याय को बताया गया कि प्रणवादि, जो प्रणव आदि पवित्राणाम मंत्राणाम जपः मोक्ष शास्त्र अध्ययनम हुआ। दो चीजें स्वाध्याय के लिए बताई गई कि प्रणव आदि, जो प्रणव माने ओम, इसका जप करना चाहिए, ये स्वाध्याय है। दूसरा मोक्ष शास्त्र उपनिषद गीता आदि का निरंतर अध्ययन करते रहने से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जैसे चौबे जी उसका फल बता रहे थे, इसे ये स्वाध्याय का एक बड़ा विचित्र फल बताया पतंजलि ने कि स्वाध्यायशील जो व्यक्ति साधक होता है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, जो स्वाध्याय प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके जो इष्ट देवता होते हैं उस योगी के, इच्छा करने पर वो स्वयं दर्शन देते हैं। सिद्ध ऋषि मुनि सब उसको दर्शन देते हैं। अब इसमें विश्वास, ये ऐसी चीजें हैं जो विश्वास करने की है भी नहीं भी है। लॉजिक लगाएंगे तो कहेंगे अरे कहाँ दर्शन देते हैं, क्या प्रमाण है। तो पूरा योग शास्त्र ही लॉजिक का नहीं है। हम कहेंगे कि आप ये साधना के क्षेत्र पर चलिए, आगे बढ़िए, आप कहें कैसे ये सिद्धियां मिलेंगी हमको, तो ये कहीं जवाब होगा कि आप करके देखिए। जैसे आप कहते हैं ना कि गन्ना मीठा होता, हमने कहा, आप कहें क्या प्रमाण है कि मीठा होता है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि आप उसको चेक करके स्वाद करके देखिए तो पता चलेगा। उसी प्रकार से ये सिद्धियां जो मिल रही हैं योग साधना से, वो तभी उनका अनुभव होगा जब योगी उस योग के पथ पर चले। तो स्वाध्याय से ये फल मिलता है। और संतोष तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अहिंसा की व्याख्या चौबे जी ने किया, इसी तरह से संतोष की बहुत अधिक जरूरत है। संतोष तो ये माना गया कि जो कुछ जैसे अपरिग्रह से तुष्टि होती है, उसे संतोष से भी कि जो कुछ हमारे पास सन्निहित साधन है उसके अधिक की तृष्णा न रखना, उससे अधिक में आसक्ति न रखना। ऐसा नहीं जो आपके पास 10 रुपये कमाए उसी में संतुष्ट हो जाए। अधिक 20 रुपये कमाने के लिए आप एकदम आसक्त न रहें, उसी के लिए हमारे भीतर तमाम तृष्णा आसक्तियां आ जाएं। तो जब संतोष का व्रत का पालन करेगा आदमी साधक, तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति आती है तो उसको अनुत्तम सुख लाभा। पतंजलि स्वयं कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। अनुत्तम सुख का मतलब सुप्रीम प्लेजर। अगर आपको सबसे ऊंचा सुख प्राप्त करना है तो संतोष बहुत जरूरी है। ये नियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और आज भी हम लोग ये देखते रहे कि संतोष का नहीं रहने से तृष्णा बढ़ती जा रही है। तृष्णा क्षय को ही, संतोष के बिना तृष्णा का क्षय नहीं हो सकता है। और जब तक तृष्णा बनी रहेगी तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। और आजकल उसका बहुत
पांडे जी हमारे सामने बैठे हुए, बहुत रामचरितमानस के प्रेमी हैं, हमको भी कुछ कभी चर्चा हो जाती है। तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही, अब काम अछत सुख सपने हुनाई। बिना संतोष के हमारी तृष्णाएं कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, और जब तक कामनाएं इच्छाएं हमारी तृष्णा बनी रहेगी तब तक सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। ये हुआ संतोष का। दो ठुआ रह गए, उसकी व्याख्या हुआ पहले आचार्य ने कर दिया है, तप और स्वाध्याय। तप भी योग दर्शन में दूसरे अध्याय का शुरुआत ही क्रिया योग से होता है। उसमें तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उसको वहां क्रिया योग कहा गया है। तो तप को यहाँ पर ये माना गया ना अतपस्विनो, व्यतिरेक विधि से कहते हैं कि जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही अनादिकाल से चली आ रही जो चित्त की वासनाएं हमारे भीतर अविद्या की हैं, वो तप के द्वारा ही खत्म की जा सकती हैं, क्षीण की जा सकती हैं। और दूसरा तप का एक व्यवहारिक है कि तपो द्वंद्व सहनम, शीत उष्ण, खाना पीना, भूख प्यास, खड़े रहना, बैठे ही रहना, काष्ठ मौन, आकार मौन, ये तमाम द्वंद्व हैं, उसको सहन करने की क्षमता तप से ही आती है। तो इसलिए तप बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चे अपनी जानकारी के लिए चाहें तो गीता के 17वें अध्याय में 14 से 19 श्लोक तक 6 श्लोकों में 3 प्रकार के तप की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। ये शारीरिक तप, वाचिक तप और मानस तप, और साथ में सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। अगर जो पढ़ना चाहेंगे तो हम रेफरेंस हमको याद है 17वें अध्याय का 14 से लेकर 19वें श्लोक। तो गीता तो सभी के पास रहता है। जब हम कभी गीता पढ़ाते थे 2 रुपए की गीता हमारे जेब में रहती थी, और 5 रुपए की गीता बच्चे अपने पास रखे रहते थे। गीता तो इतना सस्ता है, तो उसको ये है कि ये तप जो है, तप का इतना महत्व है। तप का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, पतंजलि ने बताया कि तपस्या के द्वारा अशुद्ध क्षयात, अशुद्ध क्षयात तपसा काज इंद्रिय सिद्धि। आगे विभूति पाद में एक चीज और आप लोगों को बता दे, विभूति पाद में अनेक प्रकार की विभूतियों की चर्चा की गई है, तो उनको वहां देखना चाहिए कि योग साधना के द्वारा अनेक प्रकार की सुपर नेचुरल पावर्स, मिरेकुलस पावर योगी को मिलती हैं, लेकिन वहां पर सबको मना किया कि योगी जो है वो इनके आकर्षण में न रहे, इनसे आगे बढ़े, क्योंकि कैवल्य में बाधक हैं। तो तप के द्वारा क्या होता है, काय और इंद्रिय की सिद्धि होती है। काय सिद्धियां जो अणिमा आदि हैं, इंद्रियों की सिद्धि जो होती है, जैसे दूर की चीजों को सुन लेना, दूर की चीजों को देख लेना, सूक्ष्म चीजों का, ये सब इंद्रियों की सिद्धि वहां बताई गई है। यही है ईश्वर प्रणिधान के लिए साफ साफ होता है कि ईश्वर प्रणिधान वही है जो अपने सर्व क्रियाणाम परम गुरव अर्पणम तत् कर्म फल संन्यासम हुआ। अपने सभी क्रियाओं का, अपने सभी कर्मों का श्रद्धा पूर्वक, देखिए यहाँ अहंकार का त्याग है। हम सभी लोग ये समझते हैं, अहंकार से हम बहुत व्यथित रहते हैं हम लोग। और गीता में कहा कि अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा है वही कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को ही कर्ता समझते हैं। अहंकार जब तक व्यक्ति में बना हुआ है तब तक अपने कर्मों को ईश्वर पर वो अर्पण कर ही नहीं सकता। इसलिए अहंकार जब खत्म होगा तो अपने कर्मों को, वो कहते हैं व्यास जी कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपने सभी कर्मों का परम गुरु ईश्वर पर अर्पण कर देना चाहिए, और तत्फल संन्यासम हुआ, या उन कर्मों के फलों का त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर के यहाँ परम गुरु कहा गया है, वहां पर ईश्वर की जब व्याख्या हो रही तो वहां पर ईश्वर के लिए एक सूत्र है, सच पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो पूर्वे सामपि गुरु है, वही जो है सबसे परम गुरु हैं ईश्वर, उन्हीं को अपने कर्मों को समर्पित कर देना चाहिए। इससे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और ईश्वर प्रणिधान का फल पतंजलि, स्वयं पतंजलि ने बताया है कि ईश्वर प्रणित समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि ईश्वर की कृपा से ही। देखिए
प्रणिधान के दो अर्थ हो, कंसंट्रेशन ऑन गॉड, अपने चित्त को ईश्वर पर कंसंट्रेट करना, दूसरा डिवोशन टू गॉड। दोनों जैसा जो व्यक्ति है साधना में ईश्वर को एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन मान करके उन पर हमेशा ध्यान करना, उनके नाम का जप करते रहना, या ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम भक्ति होना। ये कहते हैं कि जिस योगी में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, उसकी समाधि की सिद्धि जल्दी हो जाती है। ईश्वर का जप करते रहने से दो चीजों का फायदा होता है। तब जब ईश्वर का जप करते हैं, प्रणव का जप करते हैं, तो दो चीजें मिलती हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमा, जो प्रत्यक्ष चेतना है माने आत्म साक्षात्कार होता है, स्वबोध होता है, अपने आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है ईश्वर की कृपा से। और अंतराया भावस्य, ईश्वर की अगर कृपा बनी रहे तो योगी के साधना पथ में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी अंतराय हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन सभी को पार करते हुए योगी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। किंतु यदि ईश्वर की कृपा उस पर नहीं है तो विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े तपस्वी भी, उनकी साधना बीच बीच में टूट जाती थी। इसीलिए पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान पर बहुत जोर दिया है। ईश्वर में श्रद्धा रख करके, ये 1 मिनट, नीति ने कहा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का एक मेटाफिजिकल बैकग्राउंड है कि विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। हम लोग चाहते हैं सांख्य में, योग में भी ये दो, जैसे वहां पुरुष और प्रकृति है, तो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग होता है उसकी वजह से पुरुष ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के धर्मों को अपना समझ लेता है। तो उसमें जब तत्वाभ्यास करेगा, तत्व के वास्तविक स्वरूप पर अभ्यास करेगा, उसका चिंतन करेगा, तब उसके भीतर सांख्य में एक ऐसा ज्ञान का उदय होगा जिसमें वो कहेगा नास्मि, तो मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति धर्म मेरे नहीं है, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए दो का होना जरूरी है, इसलिए द्वैत की जरूरत है वहां। तो ए इज नॉट बी जब आप कहेंगे तभी वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। और दूसरा, यहाँ पर जो दृष्टा दृश्य दो शब्दों का प्रयोग किया गया, दृष्टि दृश्य संयोगो हे हेतु। दृष्टा कौन है? तो कहा कि दृष्टा बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष, बुद्धे बुद्धि का प्रति संवेदी पुरुष है। और बता दीजिएगा नहीं बच्चे समझ में आ रहा है। तो दृष्टा का भी, दृष्टा और दृश्य ये दो हैं। तो दृष्टा स्वरूप जो पुरुष है वो कौन है? बुद्धि है प्रति संवेदी। बुद्धि में, चित्त में जो कुछ हो रहा है वो पुरुष में प्रतिफलित होता है, उपरक्त होता है। वास्तव में पुरुष में नहीं है, जितनी चीजें हैं वो सब चित्त में है, लेकिन पुरुष उपचरित है, वो पुरुष पर उपचरित होती हैं। जैसे जय पराजय आज सैनिकों को होती है, लेकिन वो राजा पर उपचरित होती है, वैसे यहाँ भी है। तो दृश्य क्या है? बुद्धि सत्वोपरूढ़ा सर्वे धर्मा, बुद्धि सत्व पर उपरूढ़ जितने भी धर्म है वो दृश्य हैं। तो दृष्टा और दृश्य में भेद हो, वही विवेक है। विवेक ख्याति माने ज्ञान, विवेक ज्ञान भी उसको कहते हैं। सांख्य दर्शन में इसका बहुत महत्व, योग सांख्य में ही है, माने सबसे ज्यादा योग में है। तो विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानो पाया, समझे? ये विवेक ख्याति ही हमारे कैवल्य का एकमात्र साधन है। और इसी विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए योग की सारी साधना है। योग की सारी साधना इसीलिए है कि हमारे विवेक ख्याति का उदय कैसे हो। जब विवेक ख्याति का उदय हो जाएगा तो पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस इतना ही। अब आप लोगों को बहुत बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम यहाँ बोलने कुछ आए थे, बोल कुछ गए। मैं मन बना के आया था केवल क्रिया योग बोलूंगा, लेकिन तमाम चीजें बोल गए और सब भ्रमित हो गए। अद्भुत व्याख्यान आचार्य की ओर से। और जब मैंने इनसे बाल हट किया था, जैसा कह रहे थे कि श्रुति मिश्रा जबरदस्ती खींच के लाई है मुझे, तो ये इनका स्नेह है कि मैं
इनसे कहती हूँ और इन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जब जब हठ करेंगे, जब जब इनसे आग्रह करेंगे, इन्हें आना होगा। और जहाँ तक विषय का प्रश्न है, तो योग में के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष के पश्चात आध्यात्मिक पक्ष पर रेखांकित किया सर ने, और कुछ नए बिंदु जाने और कुछ पुराने बिंदु की हमने पुनरावृत्ति कर ली। और इसी क्रम में मंचासीन हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी हैं, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, नहीं कुछ तो संगीत, संस्कृत और संस्कृति जिसको कहते हैं, संस्कृति तो दर्शन भी है, उसका ये उसकी त्रिवेणी है ये, और 45 से अधिक शोध पत्रों के रचयिता हैं, 6 ग्रंथों के प्रणयनकर्ता। मैं दो ग्रंथों का मैं नाम लेना चाहूंगी। प्राणायाम विमर्श योग की ओर संकेत कर रहा है, और दूसरा सांख्य और काश्मीर शैव दर्शन में सृष्टि, जो मैंने पढ़ा था, जो कि सांख्य का ग्रंथ है। स्वाभाविक है कि सांख्य और योग का भंडार इनके अंदर रचा बसा हुआ है, और ये एक जलनिधि है। कुछ मुक्ताएं हमें मिल ही जाएंगी, इसी लोभ से हम यहाँ पर बैठे हुए। सादर आमंत्रित है सर। पहले श्रुति जी मुझे बता दीजिए कि समय कितना है? लेकिन आपने जो समय दे रखा था उसके अनुसार केवल 10 मिनट बचा है, तो जैसा आप कहें। सर आप अपने अनुसार योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मंचासीन परमादरणीय प्रोफेसर कृपाशंकर ओझा जी, पता नहीं आप लोगों ने ओझा क्यों नहीं लिखा है, मैं जहां तक जानता हूं ओझा जी है परंतु आप लोगों ने लिखा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए उपाधि रहित है। चलिए, अब इस एज में आकर उपाधि रहित रहने का प्रयास तो हर एक को करना चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी, शशिकांत जी अभी नहीं है, पहले उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, और डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी, कुशल संयोजिका डॉक्टर श्रुति मिश्रा जी, हमारे समक्ष सौभाग्यवश उपस्थित प्रोफेसर विजय कुमार सोमस्कंदन जी, इस दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसपी पांडे जी, एवं विभाग के अन्य अध्यापक एवं अध्यापिकागण तथा प्रिय छात्र छात्राओं, पहले मैं जो अध्यक्षीय दायित्व है उसका निर्वहन करने का प्रयास करता हूं, और तत्पश्चात श्रुति जी ने मुझसे एक दिन कहा था, पहले व्हाट्सएप करके पूछा था कि क्या आप कोई एक पत्र प्रस्तुत करेंगे। मैंने हाँ कह दिया था, और आपने उसका शीर्षक पूछा तो मैंने कह दिया था कि सांख्य एवं योग दर्शन का अंतः संबंध। अगर समय होगा तो कुछ बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय साध्य है, लेकिन कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मैं संक्षेप में अध्यक्षीय जो दायित्व है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी ने प्रारंभ में ही एक प्रश्न उठाया, प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन प्रश्न का अगर मैं ऊह करूं, संभवतः प्रश्न यह था कि नियम के संदर्भ में बतलाते हुए महर्षि पतंजलि ने शौच संतोष तपस्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमा। अच्छा, तो वहां पर भी ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की, और क्रियायोग में भी तपस्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रियायोग, यहाँ भी क्रियायोग की चर्चा की। ये क्यों, कुछ उत्तर
समाधान देने का प्रयास उन्होंने स्वयं भी किया था। विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए कुछ सहज शब्दों में मैं उसका समाधान देना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी कोई रुग्ण होता है, रोग होता है, किसी को चिकित्सक के पास जाता है, अगर रोग की जो स्थिति है वो प्रारंभिक है, तब कम औषधि से उस रोग का निवारण हो जाता है। लेकिन वही अगर रोग की स्थिति भयंकर हो जाए और तब चिकित्सक के पास जाता है, तो उसको उससे कहीं अधिक शक्तिशाली औषध देना पड़ता है, तब जाकर के रोग की निवृत्ति होती है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ भी है, क्योंकि शशिकांत जी ने ये बताया था कि मध्यम कोटि के जो अधिकारी है उनके लिए क्रिया योग बतलाया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग क्या है उसका निरूपण करने के पश्चात चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है उसको योग कहा, और योग कहने के पश्चात ये बतलाया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो अब ये जो अभ्यास और वैराग्य ये उत्तम अधिकारियों के लिए है, जिसकी चर्चा भगवत गीता में भी है, जहां अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो उस पर उत्तर देते हुए भगवान ने ये कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये जो मन है, हाँ, ये दुर्निग्रह है और चंचल है, और उसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। तथापि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, भगवत गीता भी कहती है, अभ्यास वैराग्य की चर्चा करती है। तो ये कहा गया है। तो ये जो अभ्यास वैराग्य है उत्तम अधिकारियों के लिए है, और क्रिया योग जो है वो मध्यम अधिकारियों के लिए है, और अष्टांग योग जो है मंद अधिकारियों के लिए है, सामान्य अधिकारियों के लिए है। तो इस प्रकार से अधिकारी भेद से 3 प्रकार के साधन उसमें बतलाया गया है। तो जो मंद अधिकारी है, सामान्य अधिकारी है, उनको तो संपूर्ण अष्टांग योग के अभ्यास की आवश्यकता है, उसके बिना वो योग में आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी वे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अष्टांग योग का भलीभांति अनुष्ठान किया है, अभ्यास किया है। तो इस जन्म में उसका संस्कार चूंकि उनके चित्त में विद्यमान होता है, इस कारण से वे जो उत्तम अधिकारी है वे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही योग में वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात उसमें कही गई है। तो ये अधिकारी भेद से ये बात आती है, क्योंकि मध्यम अधिकारी है, कुछ अंश तक उन्होंने पूर्व जन्म में अष्टांग योग का अनुष्ठान किया है, पूर्णतया नहीं किया है, तो उनको जो है वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप जो क्रियायोग है, उस क्रियायोग रूप साधन को अगर वो अपनाते हैं, उससे योग में सिद्धि की प्राप्ति उनको होती है। इस प्रकार से है। इसीलिए ये अधिकारी भेद से जो बतलाया गया है, और जो मंद अधिकारी है उनके लिए तो अष्टांग योग है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए क्रिया योग है। इस प्रकार से 2 स्थान पर ईश्वर प्रणिधान की चर्चा वहां पर है। उन्होंने हठ योग की भी चर्चा की, और भगवत गीता में विषाद योग की चर्चा की। हम आप सबको बताना चाहेंगे, हम चूंकि गीता समिति में भी वर्षों तक रहे हैं, एक महात्मा ने एक प्रश्न उठाया था कि विषाद भी कहीं योग होता है। ये प्रश्न उठाया था कि विषाद भी कहीं योग होता है। फिर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, विषाद भी योग होता है। कब होता है? जब विषाद भगवत प्रसाद में परिणत हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ विषाद योग से होता है। प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है, और अंत में अर्जुन क्या कहते हैं, उसकी फलश्रुति क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो कहते हैं त्वत्प्रसाद, भगवत प्रसाद से मेरा जो मोह है, विषाद है, वो नष्ट हो गया। जब वो नष्ट हो जाता है वो योग में परिणत हो जाता है भगवत प्रसाद से। आवश्यकता है उस अच्युत तत्व को समझने की, इसीलिए
वहां पर कहते हैं स्थितोस्मि गत संदेह नहीं, उसमें कहते नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रसादान मयाच्युत, वहां अच्युत संबोधन करते हैं। उस अच्युत तत्व को अगर हम समझ लेते हैं तो ये स्थिति प्राप्त होती है। तो ये इसलिए विषाद जो है वहां योग हो जाता है। इस प्रकार व्याख्या की थी। डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी ने जो कुछ भी कहा हम उनका नमन करते हैं, क्योंकि हमारे सिद्धांत के सर्वथा विरोधी सारी बातें हैं। आपने महर्षि पतंजलि ने योग का प्रणयन नहीं किया, ये जो बात कही, महर्षि पतंजलि भी कहीं दावा नहीं करते हैं कि मैंने योग सूत्र का प्रणयन किया। जैसा कि आचार्य कृपाशंकर जी ने स्पष्टतया कहा कि उसमें जो अनुशासन पद है, उस अनुशासन पद की व्याख्या करते हुए व्याख्याकारों ने, आचार्य वाचस्पति मिश्र आदि ने कहा शिष्टस्य शासनम अनुशासन। शिष्टस्य माने पूर्वम उपदिष्टस्य, पूर्व में जिसका उपदेश किया गया है उसका पुनः उपदेश करना ही जो है अनुशासन है। इसलिए महर्षि पतंजलि योग के प्रथम उपदेशता नहीं है, प्रवर्तक आचार्य नहीं है। तो है कौन? किसने पूर्व में उपदेश किया? हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातना। हिरण्यगर्भ जो है इसके प्रथम प्रवक्ता है, इस प्रकार से उसमें बताया गया है। तो दूसरी बात आपने जो कही थी कि योग से मोक्ष संभव नहीं है, उसका उत्तर तो आचार्य कृपाशंकर जी ने दे दिया है। बहुत अधिक दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासन, द्वितीय सूत्र में योग का लक्षण प्रस्तुत किया योग चित्त वृत्ति निरोध, तृतीय सूत्र में ही उसका जो फल है उसको बतला दिया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, स्वरूप में अवस्थित होना ही दृष्टा अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा चेतन, उसका अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही मोक्ष है। क्योंकि कहा गया है कि मुक्तिर हित्वान्यथा भावम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या है? अन्यथा भावम हित्वा, जो ये अन्यथा भाव है, बुद्धि के सारे धर्मों को अपने में जो ओढ़ लिया है, यही है अन्यथा भाव। तो उस अन्यथा भाव को छोड़ करके मुक्तिर हित्वान्यथा भावम स्वरूपेण व्यवस्थिति, उस पुरुष का, आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चेतन होना यही उसका स्वरूप है, चिन्मात्र स्वरूप है। तो उसमें अवस्थित होना यही तो मोक्ष है। तो इस प्रकार मोक्ष की बात यहाँ भी कही गई है और अंतिम सूत्र में भी कही गई है। इसीलिए योग से मोक्ष नहीं होता, ये मानने के लिए हम लोग तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। अस्तु, ये उनका विचार है, अपना विचार है, विचार का स्वातंत्र है, हम उस विचार का भी आदर करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी ने योग दर्शन की क्या उपयोगिता है, मानवता के विकास में योग दर्शन की क्या भूमिका है, इस पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। और आपने बिल्कुल सही किया, सही कहा कि योग दर्शन के चिंतन का जो विषय है वो प्राणी मात्र है, केवल मानव नहीं, प्राणी मात्र योग दर्शन के चिंतन का विषय है। बिल्कुल सही बात है। आपने यम की चर्चा करते हुए जब अहिंसा की चर्चा की, उसमें एक वाक्य को कहते हुए आपने उसको पतंजलि का वचन कहा, लेकिन मैं विनम्र भाव से उसमें निवेदन करना चाहूंगा कि वह वचन पतंजलि का नहीं है, भाष्यकार व्यास का है। क्योंकि भाष्यकार व्यास अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहते हैं तत्र सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह, ये व्यास का वचन है। तो इसलिए मैं विनम्र भाव से आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो पतंजलि का नहीं है, अपितु व्यास का वचन है। और आपने यम और नियम पर काफी चर्चा की और आपने ये भी बताया कि आज जो यम और नियम है उसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं। और आचार्य कृपाशंकर जी ने स्पष्टतया कहा कि ये प्रथम 2 सोपान, इसको छोड़ करके हम आगे वाले सोपान पर पैर रखते हैं तो हम लड़खड़ा सकते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमको सोपान क्रम से ही चलना चाहिए, यम और नियमों को अपनाना चाहिए, उसके बाद आसन और प्राणायाम की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। आपने मैत्री भावना की चर्चा की, जो महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में उसको बतलाया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादन। यहाँ चित्त प्रसादन स्पष्टतया है। प्रसाद क्या है?
अमरकोशकार कहते हैं प्रसादस्तु प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। चित्त जब प्रसन्न होता है उससे लाभ क्या होता है? भगवत गीता कहती है प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तित। अगर चित्त आपका प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने का तात्पर्य क्या है? सांख्य दर्शन कहता है प्रसन्न चित्त कब होगा? जब उसमें सत्व का समुद्रिक होगा, जब सत्व गुण का प्राबल्य होगा तभी आपका चित्त प्रसन्न होगा। और सत्व का अगर समुद्रिक होगा तब जो है आपकी बुद्धि जो है स्थिर होगी। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ध्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति भगवत गीता ये उद्घोष करती है। और आपने आचार्य कमलाकर मिश्र जी की चर्चा की, उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, उसकी बात आपने नहीं कही, मैत्री भावना पर उनकी एक पुस्तक भी है। और प्रायः हम तो मालवीय भवन में योग साधना केंद्र में रहे हैं, वंकम डिजिटल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से वहाँ के लोग आते थे यहाँ योग सीखने के लिए। उसमें कई कक्षाएं होती थी, कुछ कक्षाएं हम भी लेते थे, कुछ आचार्य कमलाकर त्रिपाठी जी लेते, कई लोग लेते थे। तो उसमें भी एक दिन निश्चित रूप से मैत्री भावना वो कराते थे, प्रैक्टिकल कराते थे उसका, तो ये विशेष बात है। और आचार्य कृपाशंकर ओझा जी ने बहुत ही सिलसिलेवार सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों के संदर्भ में बतलाया। और आपने जैसा कि भगवत गीता कहती है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, और जब सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, उस संदर्भ में भी आपने बतलाया। वस्तुतः वस्तु स्थिति ये है कि सांख्य और योग ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं थे, अलग अलग दर्शन नहीं थे। प्राचीन काल में ये दोनों एक ही दर्शन थे, लेकिन परवर्ती काल में सांख्य को अलग कर दिया, योग को अलग कर दिया। और बड़ी विडंबना तो ये है कि परवर्ती काल में सांख्य को जो है निरीश्वरवादी कह दिया और योग को शेश्वर कह दिया। उस संदर्भ में मैं अपना जो पत्र अगर संक्षेप में थोड़ा सा कहना चाहूंगा तो उसमें बतलाऊंगा। अस्तु, तो ये है। और आपने तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की बड़ी सुंदर सुस्पष्ट व्याख्या की। और सांख्य ने सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ये कहा, और वह मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो उसका मार्ग, उसका जो प्रायोगिक पक्ष है उसको विशेषतः योग ने बतलाया। योगांगा अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते है, उस विवेक ख्याति की आपने चर्चा की। और ये जो विवेक ख्याति है उसी की वही जो है हान का उपाय है, अर्थात मोक्ष का उपाय है। ये सारी चर्चा आपने की बहुत ही सुंदर ढंग से। आपने संतोष की भी चर्चा की, नियम की चर्चा करते हुए। संतोष के संदर्भ में मैं एक बहुत ही अच्छा श्लोक है मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, हमारी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं पा सकता इच्छाओं। इसीलिए भर्तृहरि ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, उस जमाने का श्लोक है इसीलिए संख्या आपको लघु लगेगी। निस्वी वस्ति शतम, जिसके पास एक भी रुपये ना हो वो सोचता है कि किसी प्रकार मेरे पास 100 रुपये हो जाए। निस्वी वस्ति शतम, 100 रुपया हो जाने के बाद शती दश शतम, 100 रुपया होने के बाद सोचता है मेरे पास 1000 रुपये हो जाए। लक्षम सहस्राधिप, 1000 रुपया होने के बाद वो सोचता है कि मेरे पास 1,00,000 रुपये हो जाए। लक्षम सहस्राधिप। फिर लखपति होने के बाद लक्षेश क्षितिपालता, वो पुराने जमाने की बात है इसीलिए मैंने कहा लखपति होने के, आज तो अरबपति होने के बाद भी नहीं सोचता है कि मैं राजा बनूं, लेकिन लक्षेश क्षितिपालता, लखपति होने के बाद वो सोचता है कि मैं क्षितिपाल बन जाऊं, राजा बन जाऊं। और क्षितिपति ही चक्रे शताम वांछति, जो जब वो राजा बन जाता है वो सोचता है कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। फिर चक्रवर्ती राजा अगर बन गया उसके बाद चक्रेश पुनरिंद्रता, चक्रवर्ती राजा बनने के बाद वो सोचते हैं कि मैं इंद्र के पद को प्राप्त कर लूं। और सचिपति ही ब्राह्मण पदम वांछति, जो सचिपति है इंद्र है वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं है, ब्रह्मा विष्णु पदम, ब्रह्मा चाहते हैं कि मैं विष्णु के पद को प्राप्त कर लूं। और वो विष्णु भी संतुष्ट नहीं है, हरि शिव पदम, वो हरि जो विष्णु है वो भी शिव के पद को प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में भर्तृहरि कहते हैं तृष्णावधिम को गतः, तृष्णा का पार किसने पाया? तो ये तृष्णा का पार पाना चूंकि अत्यंत कठिन है, मैं कहता हूं कि
महर्षि पतंजलि ने संतोष को एक ब्रेक के रूप में दे दिया है। जैसे गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो कहीं भी दुर्घटना घट सकती है, तो संतोष जो है ये ब्रेक है हमारे जीवन में, वो अगर ब्रेक रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए संतोष परमम सुखम कहा गया है। ये जो है संतोष परम सुख है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ कहा गया है। तो ये संतोष की महिमा है। और आपने विभूतियों की चर्चा करते हुए बिल्कुल सही बात कही कि ये विभूतियां जो हैं, जो समाधि है, जो योग है, उसमें वो उनको उपसर्ग कहा गया है, वो बाधक है, साधक नहीं है। तो इसीलिए उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। उसका उद्देश्य एकमात्र यही है, शास्त्र में आपका विश्वास उत्पन्न हो, इसके लिए ये चमत्कार दिखाया जाता है, सिद्धियां दिखाई जाती है। उसका एकमात्र उद्देश्य ये है, वही फंस करके रह जाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए विभूतियों से हमें सजग भी होना चाहिए, ये है। अब थोड़ा सा समय है, अच्छा ठीक है, मैं संक्षेप में बता दूं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये निश्चित रूप से विडंबना है कि सांख्य को लोग निरीश्वरवादी दर्शन कहते हैं और योग को शेश्वर कहते हैं, और दूसरी ओर सांख्य और योग को समान तंत्र कहते हैं। ये परस्पर विरोधी बात है। समान तंत्र का मतलब, तंत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र। डॉक्टर दीनानाथ पांडे जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये तंत्र शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ शास्त्र के अर्थ में हुआ है। तो समान तंत्र, इसीलिए योग शास्त्र है। भगवत गीता तो स्पष्ट उद्घोष करती है, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, वहां शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और हमारी परंपरा इसको समान, सांख्य और योग को समान तंत्र परंपरा मानती है। तो इसलिए समान तंत्र का मतलब है समान शास्त्र। तो एक और तो आप कहते हैं एक शेश्वर है और दूसरा निरीश्वर है, तो ये समान तंत्र कैसे हो सकता है? इतना बड़ा विरोध जहां है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के बीच में अंतः संबंध क्या है। तो इसको जानने के लिए वस्तुतः सांख्य क्या है और योग क्या है उसको जानना जरूरी है। अभी विवेक ख्याति की किसी ने बात की थी। संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि जिस प्रकार सूत्रों के लिए महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा, सूत्रे स्वेव ही तत्सर्वम यद वृत्तो यच्च वार्तिके, सूत्र में ही वो सारी बातें कह दी जाती है जो उसके वृत्ति ग्रंथ में कही जाती है, वार्तिक में कही जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ शब्द में ही सारी बातें कह दी जाती है एक सूत्र रूप में। अगर उस शब्द का हम विश्लेषण करें वो सारा अर्थ सुस्पष्ट हो जाता है। सांख्य शब्द जो है संख्या शब्द से बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। संख्या शब्द का एक बड़ा ही प्रसिद्ध अर्थ है गणना। लेकिन गणना अर्थ में अगर हम सांख्य को लें तब तो फिर हमको न्याय दर्शन को भी कहना चाहिए सांख्य, क्योंकि उसने षोडश पदार्थ का परिगणन किया है। और शैव शास्त्र को भी, शैव दर्शन को भी हमको कहना चाहिए सांख्य, क्योंकि उसने 36 तत्वों का निरूपण किया है। इसीलिए गणना के आधार पर अगर हम सांख्य कहें वो बहुत उचित नहीं है। तो संख्या शब्द का अर्थ क्या है? संख्या शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञानम संख्या। सम्यक ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, जिसकी चर्चा आचार्य कृपाशंकर जी ने की। मैं विद्यार्थियों के लिए केवल कहना चाहता हूं, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान और सम्यक ज्ञान में यह अंतर है कि जैसे एक पारदर्शी पात्र में आपने पानी रखा और विद्यार्थी से पूछा इसमें क्या है, तो कहे पानी है। एक पारदर्शी दूसरे पात्र में दूध रखा और कहा कि इसमें क्या है, तो कहेंगे दूध है। अब इन दोनों को एक बड़े पारदर्शी पात्र में मिला दीजिए, अब पूछिए कि इसमें क्या है, तो क्या कहेंगे? बहुत कठिनाई होती कि उस समय क्या कहें। जैसा दूध हम लोग को मिलता है वैसे तो हम लोग दूध ही कह लेते हैं उसको, लेकिन दूध तो है नहीं, ये सुनिश्चित है। तो उस मिश्रित अवस्था में भी अगर उसको कोई अलग कर सके, उस ज्ञान को हम कहते हैं सम्यक ज्ञान या विवेक। विवेक शब्द का अर्थ है विविच्य ज्ञानम। विविच्य माने पृथक कृत्य, माने जलम पृथक, जल पृथक है, दुग्धम पृथक, दूध पृथक है, अलग है। इस प्रकार ये विविच्य ज्ञानम, पृथक पृथक करके जो ज्ञान है उसी को कहते हैं विवेक। तो सांख्य के क्षेत्र में पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। पुरुष ने जो बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपित कर लिया था वो सही नहीं है। उसका स्वरूप केवल चेतन होना है। वह
ना सुखी है ना दुखी है? सुख दुख तो किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। लेकिन बुद्धि के सान्निध्य के कारण बहुत सुंदर उदाहरण देकर के, जपा कुसुम का उदाहरण देकर के आपने ये समझाया था कि जपा कुसुम जब हम स्फटिक के पास रख देते हैं तो जो स्वच्छ है स्फटिक, वह स्वच्छ स्फटिक रक्त वर्ण का हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन क्या स्फटिक रक्त वर्ण का है? नहीं है, उस समय भी नहीं है। इसी में उसका उत्तर है कि व्युत्थान के काल में भी वह पुरुष चेतन ही है, वह सुखी दुखी उस समय भी नहीं है। लेकिन ऐसा आरोपित उपरक्त होता है उस रूप में, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। तो ये है सांख्य दर्शन, जिसका उद्देश्य है विवेक ज्ञान। और क्योंकि उसी विवेक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति है। और योग को तो आप सभी लोग जानते हैं, योग का भी दो अर्थ है। योग का एक अर्थ दो वस्तुओं का मिलन भी है, और योग का एक अर्थ समाधि भी है। ऐसे तो और एक तीसरा अर्थ भी है, संयमन भी है, लेकिन उस अर्थ में हम नहीं जाते हैं। लेकिन दोनों ही अर्थों में शास्त्रों में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। न्याय आदि दर्शन में युजिर योगे, उस युज धातु जिसका अर्थ है दो वस्तुओं का मिलन, उस धातु से निष्पन्न जो योग शब्द है, उसका प्रयोग न्याय दर्शन में प्राप्त होता है। क्योंकि उसमें एक शब्द आता है कि योगी के दो भेद है, एक है युक्त योगी, एक युंजान योगी। ये जो युंजान पद है, ये युंजान पद तभी बन सकता है जब युजिर योगे धातु से हम बनाएंगे। अगर युज समाधव, समाधि के अर्थ में पतंजलि ने जिस योग शब्द का प्रयोग किया है, उस युज समाधव धातु से अगर हम युंजाना बनाना चाहेंगे, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नहीं बन सकता है, वहां युज्यमाना बनेगा। तो इसीलिए ये सुस्पष्ट है कि न्याय दर्शन में वहां ये युजिर योगे इस अर्थ में योग अर्थात दो वस्तुओं के मिलन के अर्थ में वहां पर उसका प्रयोग हुआ है। और महर्षि पतंजलि ने जो योग शब्द का प्रयोग किया है, वो निश्चित रूप से समाधि अर्थ में। क्यों? क्योंकि व्यास व्याख्या करते हुए, अथ योगानुशासनम की व्याख्या करते हुए सबसे पहले कहते हैं योग समाधि। कहने की आवश्यकता क्या है? योग का अगर एक ही अर्थ होता, दो वस्तुओं का मिलन ही अगर अर्थ होता, फिर समाधि कहने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि योग का एक दूसरा भी अर्थ प्रचलित है। क्योंकि हठ योग की परंपरा में भी योग याज्ञवल्क्य नामक एक ग्रंथ है, वहां पर कहा गया है कि संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। संयोग को योग कहा गया है। किसके संयोग को? जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया है। उस अर्थ में भी योग शब्द चूंकि प्रचलित था, इसीलिए महर्षि पतंजलि के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास ने कहा योग समाधि। पातंजल योग की जहां तक बात है, वहां समाधि अर्थ में ही योग शब्द का प्रयोग होता है, ये बात है। अब ये मेरा निवेदन है कि दोनों का अंतः संबंध क्या है? दोनों दर्शन समान कर्तृक है। समान कर्तृक माने एक ही कर्ता के द्वारा दोनों दर्शन की प्रवृत्ति हुई है। दोनों दर्शन के प्रवर्तक आचार्य एक ही है। ये कैसे? यही जो अनुशासन शब्द की चर्चा हुई थी अभी अभी, कि पतंजलि प्रथम प्रवर्तक आचार्य नहीं है योग के। कौन है? तो उसमें बताया गया है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। हिरण्यगर्भ जो है वही योग के प्रथम प्रवर्तक आचार्य है। और ये हिरण्यगर्भ और कपिल दोनों एक ही आचार्य है। हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य मुसलगांवकर जी ने, गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी ने इस पर विस्तृत चर्चा की है कि दोनों किस प्रकार एक है। मैंने भी अपने निबंध में इसकी चर्चा की है, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। दोनों दर्शन के प्रवर्तक आचार्य एक है। अब आप बताइए, दोनों दर्शन के प्रवर्तक आचार्य अगर कपिल ही है, और कपिल निश्चित रूप से सिद्ध है, सिद्ध के रूप में भगवत गीता सिद्धा नाम कपिलो मुनि, वहां सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं कपिल के लिए। सिद्ध जो है योगियों को कहा जाता है। तो कपिल योगी है, इसीलिए कपिल एक और योगी भी है और सांख्य के भी आचार्य है। तो इसीलिए कपिल ही सांख्य के और योग के दोनों के प्रवर्तक आचार्य है। ये समान कर्तृकत्व, यही सबसे बड़ा अंतः संबंध है। अब आप आइए, समान कर्तृकत्व के सिद्ध होने पर ये एक को शेश्वर एक को निरीश्वर हम कैसे मान सकते हैं? क्या एक ही व्यक्ति शेश्वर और निरीश्वर दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये एक प्रवाद चला सांख्य के संदर्भ में। वो सांख्य सूत्र में ईश्वरा सिद्धे
एक सूत्र आता है, उस सूत्र को देख करके एक प्रवाद चल पड़ा कि सांख्य जो है निरीश्वरवादी है, उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है, ऐसा एक प्रवाद चल पड़ा। वस्तुतः यह पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष कहां पर है? प्रत्यक्ष जो है प्रमाण, उसका लक्षण प्रस्तुत करते हुए सांख्य सूत्रकार ने कहा, यद संबद्धम सत तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। संबद्ध होते हुए, किसी वस्तु के साथ, विषय के साथ संबद्ध होते हुए, पदाकार विज्ञानम, उस वस्तु के, उस विषय के आकार में आकारित जो ज्ञान हो जाता है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सांख्य में भी, योग में भी यही चर्चा की गई है कि इंद्रिय रूपी प्रणालिका के द्वारा हमारा चित्त विषय तक, विषय के साथ संपर्क करता है, पहुंचता है कहना बहुत सही नहीं है, विषय के साथ उसका संपर्क होता है, और उस संपर्क के कारण वह जो हमारा चित्त है वो विषयाकाराकारित हो जाता है। तो यही विषयाकाराकारित होना, यही तो चित्त की वृत्ति है, और वृत्ति को ही हमारे यहाँ सांख्य में और योग में प्रमाण माना गया है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की वो बात है। तो उसी में कहा, जब संबद्धम सत तदाकारोल्लेख विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की व्याख्या की। उस पर किसी ने कहा कि ईश्वर प्रत्यक्ष में ये लक्षण नहीं घटित होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ तो संबद्ध हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है ये घटित होगा। तो उसके बाद कहा कि ईश्वरा सिद्धे है, उसमें वो आता है कि ये जो आप जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उस ईश्वर की असिद्धि की असिद्धि है, अर्थात ईश्वर सिद्ध है, ईश्वर असिद्ध है ऐसी बात नहीं है। तो उस प्रसंग में आई हुई ये बात है, पूर्व पक्ष को हमने सिद्धांत पक्ष समझ लिया, तो यही कहीं हमसे भूल हुई, जिसके कारण हमने सांख्य को निरीश्वरवादी दर्शन कह दिया और योग को शेश्वर दर्शन कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से दोनों दर्शन शेश्वर है, क्योंकि योग दर्शन में जिस ईश्वर की चर्चा की गई है उसमें क्या कहा और किस प्रसंग में की गई है। योगियों की चर्चा की गई है, 9 प्रकार के योगियों की चर्चा की गई है। तो उसके बाद प्रश्न उठा कि 9 प्रकार के योगी जो है उसमें जो सर्वोत्तम योगी है उनके द्वारा ही समाधि की सिद्धि और समाधि फल की प्राप्ति शीघ्र होती है, या इसके अतिरिक्त भी कोई उपाय है? तब ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आती उसके उपाय के रूप में, और तब ईश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जब ईश्वर के स्वरूप को हम देखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ध्यान देने की बात है, पुरुष विशेष ईश्वर, मूल बात यही है, पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष ही ईश्वर है। जब हम कहते हैं अयम वृक्ष विशेष, ये वृक्ष विशेष है, माने एक विशेष प्रकार का वृक्ष है, वो आम्र वृक्ष हो सकता है, कटहल का वृक्ष हो सकता है, कोई और वृक्ष हो सकता है। तो वृक्षों में ही एक विशेष प्रकार का वृक्ष है, उसको बतलाने के हम वृक्ष विशेष कहते हैं, मनुष्य विशेष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहां पर पुरुष विशेष कहा गया। वैशिष्ट्य क्या है उसका? जब विशेषः कहेंगे उसका वैशिष्ट्य बताना चाहिए, तो वैशिष्ट्य बता दिया, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट। जो ईश्वर है वो क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृष्ट है, उसका संश्लेष भी नहीं होता है। लेकिन जो जीव है उसका संश्लेष होता है, वही जो बुद्धि के सान्निध्य के कारण वह जो अभिमान करता है वही उसका संश्लेष है। तो ये जीव और ईश्वर में यही अंतर है, लेकिन दोनों है क्या? पुरुष तत्व। सांख्य ने पुरुष तत्व को स्वीकार किया है। मूलतः 2 ही तत्व है, पुरुष और प्रकृति, एक चेतन और एक जड़। तो इसीलिए सांख्य को निरीश्वरवादी कहना बहुत उचित नहीं है। केवल वार्षगण्य एक आचार्य हुए, उनका मत कुछ ऐसा था जिसके कारण शायद ये प्रवाद चल पड़ा। क्योंकि समय नहीं है, श्रुति जी कुछ संकेत कर रही है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए इस विभाग के प्रति, विभागाध्यक्ष के प्रति, संयोजिका के प्रति मैं ही हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। कृतज्ञता आपको आचार्य, पूरे दर्शन एवं धर्म विभाग परिवार की ओर से। इससे सुंदर परिणति इस कार्यक्रम की हो ही नहीं सकती थी, और समय की सीमा थी, अन्यथा हमें कुछ और मुक्ताएं प्राप्त होती यहाँ पर। और विचार तो ये था कि प्रथम सत्र में ही आपकी उपस्थिति होती, लेकिन सुबह से लगातार सर किसी न किसी संकाय में अपने उद्बोधनों से लाभान्वित कर रहे हैं, तो हमें अब उपलब्ध हो पाए। तो अब तनिक भी विलंब न करते हुए, क्योंकि लंच का समय हो रहा है, सब
व्यग्र हैं, मैं राजीव जी को आमंत्रित करती हूं कि वो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करके इस सत्र का समापन करेंगे। और अगला सत्र जो आरंभ होगा, सभी लोग जो इस संगोष्ठी से जुड़े हुए हैं वो इसे नोट कर लें कि 2 बजे, कितना बज रहा है इस समय, 10 मिनट बचा हुआ है। हम इससे विलंब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शोध पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम 2 बजे 2:05 पर ज्यादा से ज्यादा हम 5 मिनट आगे कर सकते हैं। 2:05 आप मान करके चलिए, हम सभी उपस्थित हो जाएंगे। 2:05 हम आरंभ कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर समायोजन में समस्या आएगी आगे। I am Rajiv Lochan Behra. Firstly, pranam to our eminent speaker, our respected eminent and versatile speakers from East and West. And I pranam to our respected teachers from online and offline. And my love to the dear students. At first, I would like to thank to the audience because of their patience. Their patience became the pillar of success of this seminar or conference. And secondly, I would like to thank to our eminent versatile speakers, those who discuss in a multifarious way what exactly signify what yoga is and how we can live healthy. So we learn a lot in a different way, and when we combine together, we understood and we can imply in our life to live in a healthy life. And I would also like to thank to our students here, those who patiently listen and make the seminar successful. So thank you one and all from online and offline. Thank you.